evening, everyone. Is everyone comfortable with Hindi? Hindi? Hindi में बात करो तो better रहेगा. First, I have to introduce myself. My name is Ankit Kumar. I have completed my BTech in year 22 and joined masters in 22. I am currently doing my masters in specialization machine learning and computer vision from IIT Bombay. And at the same time, I cleared ESE with rank 06 in electronics and GATE with rank 29. And I have cracked multiple PSUs. Until now, I cracked, I guess, every PSU except BARC because BARC is just, my BARC interview was just 2 days before mains, so I didn't go for that. So that's why I don't able to crack BARC. Otherwise, apart from that, CIL, NTPC, or NALCO, or whatever you call it, I cracked all those from that GAD rank. But currently I'm doing my masters and I am willing to complete my masters and then join services. So this is the brief intro about myself, and these all the things I have done in 22 only. So and I want to say that these are all the first attempt, because you know that I have completed my BTech in 22 and I've started my masters in between, and with that I have done all the preparation in just 1 year. So and why I am giving that mains guidance, not any other guy? Because I secured average mark in prelims, you can say, very average mark. But after prelims, I don't study anything for the mains before prelims, because I am also opting for GATE, right? And GATE takes your December and January whole month, and that reflects in my prelims exams. And I got less mark, but after that, I have nothing to do, and I study for the mains. But being a first timer, and I have never written before that, all my exams are of the colleges are going on online, right? So I've done all the preparation of to write exams and all mains, and I have second topper of the all electronics in mains. So and I say ki my first test, in my first test or second test, I just got 88 marks, and from there I got in finals I got 185 and 155, 157 or 155. These are the 2 marks. So means with these in these 3 months only I studied for mains from scratch. Before that I don't study at all for mains. So and it's really doable. That's what I want to say from that. Okay, you have 3 months, you can do it, and that reflects in my rank. Because I have a very average prelims matter. When your results will be came out, you see that the prelims marks matters, but does not a lot. But your mains mark does not. It can directly put you in the top 10 or after top 10. So it really matters a lot, marks, mains mark, because you, if you get 1 more questions than your peer, you will be getting 15 more marks. And for 15 marks in prelims, you have to correct 7 questions. So it's really make differences. So that's why I say कि mains is really important, and you can and मेरा तो 26 को था, 26 मई को था. इस बार तो 1 महीने आप लोगों को और मिला है, राइट? तो उसका, और मैं उस टाइम पे 80 डेज में मैंने मेंस का प्रीलिम्स, मेंस का प्रिपरेशन शुरू से अंत तक किया था, और आप लोगों को वो 1 महीना और मिला है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो. So those for preparing for means casually also for the next year GATE also, it helps a lot, because mains is nothing but subjective GATE, you can say that. Means GATE में क्या होता है कि हम लोगों को तुरंत आंसर्स देने होते हैं, राइट? मेंस में हमको उसी को बना के देना होता है, या फिर 3-4 गेट के क्वेश्चंस को बना के एक फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस जिसमें कुछ थ्योरी के पार्ट होते हैं. तो आई विल बी गोइंग थ्रू कि हाउ टू means get from these marks to these marks basically in 3 months. So first of all, the first point is that you have to go through these 3 months like work hell. So be prepared for that. There is no supplement for studying or working a lot. You will fail
you will get very bad results in the test series. At some time, I got so bad results in consecutive row, then I stopped seeing the results. I just gave the test series, and for first, I guess, 1 month, I didn't see the results. Because I know if I see the results, I get demotivated. But I was giving tests. So it doesn't matter ki you are seeing results or not. And many people may analyze those things, but I know ki if I see results, my results will be not good. You will get an intuition from the tests, right? Ki you are where are you standing. So if it demotivates you for just couple of days, and for the first part, you can ignore the results, because ultimately what matters is ki you don't stop giving tests, because tests and PYQ is all that matters in these mains. So you have to really focus on those PYQ parts, and you really have to go through a lot of work hell. Second, for these 3 months, I want to say to you all, try to be alone as much as possible. By saying that, I mean don't discuss a lot of things with your friends. Try to be as alone as possible. Think on your own कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो और उसको कैसे ठीक कर सकते हो. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तभी होगा. वो ऐसे नहीं होता है कि मतलब कि रात को अचानक से ऐसे आता है. आपको उसके लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है. मतलब बहुत देर ऐसा होगा कि आप दिन भर सोचे कुछ आ नहीं रहा है, पर अचानक से आता है. तो यू मेक श्योर कि यू आर ऑल अलोन इन दिस 3 months. And 3 months, just if you are starting preparing, right, 3 months go like means snap of finger. So you really have to be alone. That works for me, I guess, very a lot, because you are anyway. If you talk to someone, there may be help, but a lot of time you are just wasting your time and energy, because ultimately you are going to give that paper, and that what matters is कि how much you have analyzed yourself. कि मैं मेंस का जो पेपर देता हूँ उसमें मैं कहाँ गलती करता हूँ, उसको मैं कैसे ठीक करता हूँ, या फिर जो मेंस का पहला पेपर हुआ था उसमें मैं किस फेज में गलती कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर वो है. फिर एक मतलब कि कैजुअल है कि मींस बेसिक्स. For the mains, I guess basics is most important. You can't run away from the basics. If your basics is good, what I mean by basics के gates के लिए जो formulas लिखते हैं हम लोग, right? मतलब कि जो short notes में formulas लिखते हैं. Take an example of anything, means radiating power or transmitting power, or means the basic formula of steady state in the controls, right? You calculate ESS, steady state errors. So you have to very good with those formulas, and those are the basics. You understand those formulas because in mains you will be going to implement that formula, and you know कि if ESS is 1 by 1 plus KP, then what the KP signifies. ठीक. गेट में ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोगों को केपी लिखा होता है कि वो पोजिशनल कांस्टेंट है, राइट, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में उसको आपको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ रहता है, कैसे निकालते हैं उसको, और वहां से कैसे करते हैं. तो बी वेरी गुड विद द बेसिक्स, एंड वंस यू आर वेरी गुड द बेसिक्स, यू कैन टैकल द लार्ज प्रॉब्लम्स वेरी फाइनली. एंड हाउ टू मीन्स बिल्ड अप द बेसिक्स. बेसिक्स कम्स फ्रॉम अ लॉट बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. फॉर्मूला रटो और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो. बहुत ज्यादा नोट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चंस करो, क्योंकि क्वेश्चंस आने हैं वहां पे नोट्स नहीं आएगा, राइट. तो क्वेश्चंस करो और क्वेश्चंस में देखो कहां प्रॉब्लम हो रहा है, उसको इंप्लीमेंट करो. तो वर्क ऑन दोस बेसिक्स. एंड एट द सेम टाइम कि व्हाट आई मीन बाय वर्किंग हार्ड कि जस्ट थिंक ऑफ योर मदर एंड फादर. Means just for the 3 months, work as hard as your mother or father doing at home. No more, no less. They are working till night, right? From the starting day to work night. So just be कि मुझे ये अगले 3-4 महीने अपने मम्मी पापा की जितना मेहनत करना है. And you will be good. मतलब उनसे बस कम मत करो, बस इतना मेहनत करो. और other things are कि PYQs. PYQs are very important. I will be giving those all points that I'm saying. Just listen to me first. कि PYQs are very important. Means I have not referred anything for my own personal sake. कि क्योंकि मेरे पास टाइम कम था. ये मुझे पता था कि मेरे पास टाइम कम था, और मैं एक बुक भी और उठा लेता हूँ और उसमें 2 या 3 दिन भी चले गए. तो it really hampered my mark. So I discussed with some of your teachers, our teachers, and stick to the PYQs. I know कि
I will be lagging with some marks because I don't expose myself to a lot of areas. So if those questions come, I will be going to be nullified. But anyway, means PYQs help me, and ESE मेंस पूरा PYQ है. तो कल हम लोगों का फैसिलिटेशन हो रहा था, तो वहाँ सेरेमनी में भी मैंने अपने दोस्तों से सारे से पूछा कि कल मैं स्पीच देना जा रहा हूँ, तो एक एक पॉइंट्स. तो द मेजॉरिटी ऑफ सेज की वर्क हार्ड एंड solve PYQs. PYQs are so important, you can't ignore it, because some questions are just copy pasted PYQs, and a lot of things are just coming from PYQs with just tweaking around. They don't do a lot of steps from the last 20 years. They don't change a lot of things from the last 20 years. और आप कितने भी वर्कबुक सॉल्व कर लो या फिर टेस्ट सीरीज लगा लो, पर PYQs नहीं करोगे तो वहां पे नंबर नहीं आएंगे. और PYQs बहुत कर लिए हो और थोड़ा टेस्ट सीरीज ऊपर नीचे भी है नहीं किए हो, या फिर वर्कबुक नहीं किए हो, क्योंकि वर्कबुक के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, राइट. वर्कबुक इज एंड टेस्ट सीरीजेस आर लाइक कि दे आर लाइक एक्सपोजिंग टू यू अननोन टेरिटरीज, कि वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक बार फेमिलियराइज कर लो, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फेमिलियराइज कर लो. तो लेकिन PYQs आर लाइक कोर, कि वो उसको पूछ रहे हैं और वो वही पूछेंगे. अब आप लोगों को वो, जैसे कि सब बोलते हैं कि वो पढ़ो जो वो पूछने जा रहे हैं, आपको पता है उनको उनसे मतलब नहीं है, आपको वो जो कुछ पूछेंगे आपको बस वो जानना चाहिए. और सिंपल, द यूपीएससी हैज अ सिंपल रूल कि, और इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है और किन्हीं का सिक्स अटेम्प्ट में भी नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ चीज पूछ रहे हैं. इट्स एज सिंपल कि आप वो नहीं जान रहे कि आप कितना भी पढ़ के आए हो, या फिर आपकी घर की स्थिति कैसी है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है. वो एक क्वेश्चन देंगे, आपको आता है आप लिखो, आपको वो एंटर कर लेंगे. यदि वो क्वेश्चन नहीं आता आपको तो उनको बॉदर नहीं करता है कि आप कितना पढ़े हो, कौन से बुक्स पढ़ रहे हो, वो क्वेश्चन नहीं आता है, आप साइड हो जाओगे. तो वो क्वेश्चंस को बहुत टैकल करने के लिए हम लोग को बस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, तो वो PYQs से आएंगे. और एक चीज और कि डोंट गो अ लॉट फॉर मींस परफेक्शन. मींस परफेक्शन रियली किल्स योर स्टडीज. I was saying कि let's take an example of a 12 mark question. If you go a 12 mark question writing perfectly, and I guess couple of guys has a very good advantage over the girls, because girls what used to do कि दो क्वेश्चन भी करने वो अच्छे से करने, तो उसमें उनका प्रॉब्लम ये है कि वो जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे मान लो एक 12 नंबर के क्वेश्चन है जिसमें आपके 8 आ गए, बहुत अच्छे परफेक्ट आंसर लिखे उसके बाद, और उसी समय में आप 12 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से 6 आ गए, राइट. तो आप अभी टेस्ट दे रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि अटेम्प्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं. तो 6 आ गए ना दो में, और उसमें क्या किए थे आप कि जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं उसके जो मतलब रिटन वी हैव और जो एक्स्ट्रा थ्योरी वाले पार्ट्स है वो नहीं लिखा, गेट के जैसा दो क्वेश्चंस के बस सॉल्व किया, आंसर बनाया और आगे निकल गए, तो वो 6 दे देंगे 12 में. तो 2 6 12 हो रहे हैं, पर एक 8 है, राइट. तो 4 मार्क्स. ऐसे आपको थोड़े इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. तो वो बहुत मैटर करता है कि परफेक्शन के लिए मत जाओ. मीन्स वर्क, और ये मेरे लिए बहुत काम करता था. मेरे दोस्त कुछ अटेम्प्ट किए हैं कि वो अटेम्प्ट किए 160 और उनकी 150 आई है. मैं अटेम्प्ट बहुत ज्यादा करता था, और क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे डर था कि क्वेश्चंस कुछ तो गलत होने वाले हैं ऐसा. तो मेक श्योर योर अटेम्प्ट्स विल बी सो हाई कि आप और अपना देख लो कि मतलब अभी तो शुरुआत हुआ है. अराउंड द लास्ट टेस्ट सीरीजेस यू विल बी नो कि मेरा कन्वर्जन रेशियो क्या आ रहा है, मतलब हम 100 का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितना मार्क आ रहा है, उसका एक परसेंटेज बना लो. यदि वो आपका 60% आ रहा है तो यदि आपको 180 लाना है तो आपको वो समझ लो कि 60% आ रहा है तो 300 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. कन्वर्जन रेशियो चेंज नहीं होने लगेंगे, आपके मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, आप कितना लिख रहे हो और उसका कितना कन्वर्ट कर रहे हो मार्क में वो चेंज नहीं होता. तो मेक श्योर कि वो आपका कांस्टेंट है, और फिर वहां से देख लो कि हमको इतना अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा. तो मेरा अराउंड 75% का कन्वर्जन रेशियो था, तो मैंने उस तरह से अटेम्प्ट किया था, मतलब 250 270 नंबर का अटेम्प्ट किया था, तब जाके वहां से कन्वर्ट हुआ था. और माय फ्रेंड्स सम फ्रेंड्स आर लाइक कि वो 90% कन्वर्ट कर ले रहे थे, तो उनको इतना अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं था, वो कामली आराम से अटेम्प्ट करते थे. तो और उसके बाद हाँ, और वो है कि अभी बहुत ज्यादा ये मत सोचो कि क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल है. मीन्स इन माई मेन्स प्रिपरेशन डेज आई डोंट यूज टू सी अ लॉट ऑफ टॉपर टॉक्स, बिकॉज फॉर मी आई गेस ऑल द टाइम्स आई एम स्टडिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा मुझे रिलैक्स करने के लिए फिर पढ़ाई में नहीं देखना होता है, कुछ और देख रहे थे. तो देयर वाज अ सीन फ्रॉम द इंटरस्टेलर, यू मे नो कि वहां पे जब इंटरस्टेलर, हाउ मेनी ऑफ गाइस यू सीन इंटरस्टेलर? हाँ, it is a sci-fi movie, right? And when they used to dog the last part, when then Matthew McConaughey says कि
it's we don't care about it कि it is possible or not, but if it is necessary we have to do it. So and I go by the same perception कि don't worry about कि ये possible है कि नहीं है, बस ये समझो कि ये necessary है तो हमको करना है, या तो we will or we will be die trying, as simple as that. लेकिन ये नहीं करना है कि उसके अलावा थर्ड ऑप्शन चुनो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब रैंक आएगा ना, एक बार जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये मैं 300 से ऊपर ले आया, तो 300 से ऊपर आपका आ गया तो आपको भले रैंक नहीं आएगा, इस बार नहीं आएगा, पास नहीं होगे, लेकिन आपको 300 से ऊपर आ गया तो मैं बता रहा हूं कि अगले साल गेट में आपका अंडर 50 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे 300 से ज्यादा आ रहा है, तो समझ लो कि आपने बहुत मेहनत किया इसने 3 महीने 4 महीने में, और वो रिफ्लेक्ट होगा अगले साल, और आपका इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, और ये किया जा सकता है, मैं बता रहा हूं 88 से वहां पे जाया जा सकता है, तो वो इजी है, बस आपको सर्टेन थिंग्स याद रखने पड़ेंगे कि कौन सब्जेक्ट्स का कौन मतलब कि हिस्सा देखना है। और सेम कि अपने दोस्तों के साथ अभी कोशिश करो कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के लिए बात मत करो, मतलब कि जब बहुत पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा टाइम मिलता है तो कोशिश करो कि दूसरी बातें करते हैं, मैं बोलूँ ना कि 90% अलोन रहो, और जब मिलो या फिर कब जब बात करो तो बहुत कम है कि प्रिपरेशन के बारे में बात करो, थोड़ा सा कैजुअल रहो, दूसरी चीजों के बारे में बात करो। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल मत देखना कोई भी वो वरना वो उससे कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, मीन्स सिट डाउन एंड स्टडी एज मच एज यू कैन, मतलब कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर पे क्या चल रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके मम्मी का तबीयत खराब है या पापा का तबीयत खराब है, मतलब कि आप पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स आने, आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपके मार्क्स नहीं आने, और आपका जब आप सो रहे हो तो आपका पीयर पढ़ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब 3 महीने के लिए भूल जाओ कि आपके पेरेंट्स मतलब अभी आपकी फैमिली कैसे जा रही है या फिर कैसे हो रहा है, 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला, बोले ना स्नैप ऑफ फिंगर में चेंज जाएगा। और वही पेरेंट्स जो आपको बोल रहे थे कि उस समय ध्यान नहीं दिए, एक बार आपका रैंक आ जाएगा, या फिर आपके रिश्तेदार जो बोल रहे हैं कि उस समय फैमिली पे ध्यान नहीं दिए, मतलब कि इधर घूम रहे थे उधर घूम रहे थे, फैमिली में प्रॉब्लम था फिर भी पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली में, वो रैंक होने के बाद आपको बोलेंगे मुझे पता था कि ये लड़का रैंक लाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने बहुत बड़े नहीं होते, छोटे से होते हैं, आप अभी इग्नोर करो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ नहीं होने वाला। और सेम कि 4 आवर ऑफ फुल ऑफ कंसंट्रेशन स्टडी इज इक्वल ग्रेटर देन 8 आवर ऑफ स्टडी। सो और मैं खुद बहुत इसमें इंप्लीमेंट करता हूं कि मुझे बड़े उस समय पढ़ाई का मन नहीं करता था, पर मैं टेबल और कुर्सी पे बैठा रहता था, मैंने एक रूम हुआ करता, मैं लाइब्रेरीज नहीं जाता था, तो मैं रूम पे बैठा रहता था और मेरा लैंप जल रहा होता था और मैं बस बैठा रहता था, पढ़ाई नहीं हो रहा है तो मैं देखता था कि कौन सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ लूं, जो जैसे मटेरियल साइंस तो सबको पढ़ने का मन करता होगा यार, नैनो मटेरियल उठा लो, मतलब देखो कि उस समय हमको क्या पढ़ने का मन कर रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, नैनो मटेरियल पढ़ने का मन कर रहा है उस समय उठा लो नाइनो मटेरियल्स पढ़ने लगो, या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ने का मन कर रहा है, क्योंकि वो क्या होगा कि वो आपके थ्योरी में मार्क जुटेंगे, तो वो कोशिश करो कि सबको फिलर्स, और कोशिश करो कि जो इंटरेस्टिंग थिंग्स है, जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे क्रिस्टल डिफेक्ट अच्छा लग रहा है, थ्योरी वाले पार्ट, जैसे फेरोमैग्नेटिक और उसी को फेरो इलेक्ट्रिक्स में समझ में आ रहा है, तो वो करो, मतलब टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट मत करो, जो भी इंटरेस्ट लगता है उसको पढ़ाई करते लोग। और उसके बाद जैसे मैंने कुछ ये मैंने बताया कि वाई, कि हम लोगों को क्यों करना है, राइट, और ये सी मैं बता रहा हूं कि बाहर में पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं देखता, पर ESE रियली मेक यू अदर थिंग, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड गेट आल्सो और ESE आल्सो, राइट, सो आई हैव सीन बोथ द फेजेस। अब गेट क्रैक कर लोगे तो आपको कुछ लोग जानेंगे कुछ लोग नहीं जानेंगे, और गेट इज नथिंग, और ये मैं तब बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास दोनों रैंक्स है, यदि मैं किसी में एक भी नहीं होता ना तो मैं ये बोल नहीं सकता। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं दोस्तों को भी बता रहा था कि यदि 10 के स्केल पे गेट का मतलब कि मेहनत का मैग्नीट्यूड 2 है, तो ESE आपको बता दें 8 है, तो आई एम रियली सेइंग बिकॉज आई हैव सीन बोथ द थिंग्स। तो अब आपको लग रहा है कि गेट और ESE में कौन ईजी है, तो आराम से गेट पे जाओ, गेट इज मच ईजियर देन ESE, ESE बहुत टफ होने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगले 3 महीने बहुत पढ़ना पड़ेगा। और मतलब कि यदि आप मतलब पढ़ते पढ़ते थक नहीं जा रहे हो तो समझ लो कि अभी आप नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। मैं लास्ट के डेज में मैं खुद बता रहा हूं कि मैं मम्मी से डेली रात को 10 बजे फोन करता था, तो मैं कभी कभी क्या करता था कि फोन आता था तो मैं इग्नोर करता था ताकि मम्मी सो जाए, तो मैं 12 बजे फोन करूं ताकि मम्मी नींद में रहे तो ज्यादा देर बात ना कर पाए। तो यू हैव टू गो थ्रू दोज मीन्स सैक्रिफाइसेस, राइट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार रैंक आ जाएगा, एक बार हो जाएगा तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मम्मी भी समझ लेगी बाद में कि, और वो जुनून होता है अंदर में कि हमको करना है। फिर आप
मतलब मैं 10 बजे से पहले, रात को 10 बजे से पहले किसी से बात नहीं किया करता था, और फोन प्लेन में मोड में रहता था हमेशा, पूरे दिन भर। मतलब दिन में कभी खाना खा रहा था तो कभी कभी प्लेन मोड से हटाता था, बाकी मेरा दिन भर प्लेन एयर मोड में होता था। मतलब कि कोई कॉल्स लेने नहीं है रात को 10 बजे तक। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अकेले रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है अकेले रहो, क्योंकि अकेले रहोगे ना तो हमेशा अपनी थिंकिंग के साथ रहोगे, रिकर कर रहे होगे कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। कभी कभी घर के बारे में भी सोचेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं होगा तो क्या होगा, वही डर तुमको करवाएगा। यदि वो डर नहीं आ रहा है तो समझ लो कि अभी मतलब कि वो हो नहीं रहा है। मतलब कि सुनील सर से मेरा इंटरव्यू जब हो रहा था तो उसमें मैंने बोला भी था कि 2 दिन के बाद मेरा रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मैं सुनील सर से बोल रहा था कि सर पता नहीं होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको डर लग रहा है कि हम, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था राइट, तो हमको नहीं पता। और ये चीज लाइक कि आप हो सकता है लिस्ट में भी ना हो, और हो सकता है कि मेरा 6th रैंक भी आ गया। तो मुझे लग रहा था कि मैं सबको अंडर वैल्यू तो नहीं कर दिया कि सब इजी है इजी है इजी है, और लास्ट में पता चला कि यार रैंक तो आए नहीं। तो मैं सुनील सर से बोल रहा था कि सर एक अटेम्प्ट और देना पड़े तो हमको कहां पे करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा 6th अटेम्प्ट आया तो सुनील सर ने फोन किया तो बोल रहा था कि बोल रहे थे कि अरे अब तो हो गया 6th अटेम्प्ट, अब तो इतना डर क्यों रहे थे उस दिन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डरना है, क्योंकि डर ही पढ़ाएगा। या फिर वो बस पढ़ाई का डर नहीं होना चाहिए, फैमिली का भी डर होना चाहिए कि ये मतलब कि मेरी फैमिली किस फेज से गुजर रही है और मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर वहां पे क्या होगा, वो उसको एम्ब्रेस करो। आई हैव माई फ्रेंड्स जिनके पास वो नहीं है, उनके पास मतलब उनके फैमिली का पूरा सपोर्ट है, जब तक वो दिल्ली में रहेंगे वो तब तक रह सकते हैं, और इनफ फैमिली के पास फाइनेंशियल पावर है कि अपने बेटे को 10 साल रख सकते हैं, और वो उनके लिए डिस्गाइज हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि 1 साल और देख सकते हैं, 1 साल और देख सकते हैं, 1 साल और देख सकते हैं। पर मेरे कुछ दोस्त हैं उनको पता है कि इस साल नहीं हुआ तो घर चला जाना है अगले साल, क्योंकि पापा के पास पैसे खत्म हो गए। या फिर कुछ लड़कियां हैं जो ऐसी हैं कि इस साल यदि नहीं हुआ तो मेरी शादी हो जानी है, तो उसको एम्ब्रेस करो कि यही अटेम्प्ट है जो अटेम्प्ट है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डर, या फिर जिसको जो बोल सकते हो उसको, मतलब ये मत सोचो कि मेरे पास कंस्ट्रेंट है, या फिर कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होना था, मतलब कि उसके पेरेंट्स तो सही है ना। और उनका देखोगे कि उनका कभी रैंक नहीं आएगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि 1 साल और कर लेंगे, इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है। तो वो उसको एम्ब्रेस करो कि जो भी, मतलब कि सोचो कि जो कठिनाइयां मुझे मिल रही है वो ही मुझे निकालेगी। सेम टाइम मतलब कि मेरे काफी फ्रेंड्स थे, वो क्लासेस के बाद बैठे रहते थे, जब तक यहां से क्लियर नहीं हो जाता था सब कुछ तब तक घर नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि मतलब कि वो जॉब छोड़ के आए थे और ये लास्ट अटेम्प्ट था उनका, और उनके पैसे रन आउट हो जाने इस बार। तो वो मतलब बस उस जुनून के साथ थे कि वो निकालने वाले इसी साल, चाहे उसके लिए जो करना पड़े, रात भर जगना पड़े जगना पड़ेगा, लेकिन उनको घर जाना फिर से मंजूर नहीं था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई करो, जितना हो सकता है पढ़ाई करो। और सबसे पेनफुल होता है कि आप जब मेहनत करो और रिजल्ट ना आए। जेई के डे से सबको पता होगा कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो जेई में पढ़ाई बहुत किए होंगे पर रैंक नहीं आया, वो बहुत पेनफुल होता है। तो सोचो कि यदि हाँ मेहनत नहीं किए, रैंक नहीं आया, कूल, लगेगा कि मेहनत ही नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेहनत करने के लिए गए हो तो पूरे फुल स्ट्रोक से करो, क्योंकि मेहनत एक बार बहुत कर लिए और उसके बाद रैंक नहीं आया, वो बहुत पेनफुल होता है। मतलब उसके बाद तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं कि एकदम ऐसा लगेगा कि सब कुछ छूट गया। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से बहुत पढ़ने में तेज रहता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं मेरा सेकंड सेम में 5.9 एसजीपी है, और मैं बस कॉलेज से ड्रॉप आउट इसलिए नहीं लिया था, जैसे सब बोलते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है, या फिर बहुत ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है, ऐसे टॉपर्स बोलते रहते हैं। मेरा ऐसा नहीं था, मतलब मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, सिंपल। लेकिन हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको ईएस में रैंक लाना है, राइट। और बहुत बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट था, बहुत इंटरेस्ट था, बहुत इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट मेरा जाता था रैंक मार्क्स से, मार्क्स मोटिवेट करते थे। आप, मैं बता रहा हूं ना, एक बार मार्क आने लगेंगे, 150 क्रॉस करने लगोगे सब्जेक्ट्स में, तो आप खुद नहीं संभाल पाओगे, आपको लगेगा कि हमको और क्वेश्चंस करने चाहिए, कहां गलती कर रहे हैं हमको। मतलब वो सोने नहीं देता था मुझे। मेरा याद है कभी कभी मैं 12 बजे सोने के लिए जाता था तो 2 बजे तक मैं बस देख रहा होता था कि कल जो क्वेश्चंस करने वाला हूं मैं, उसमें कहां से क्या कर सकता हूं कि कुछ नए क्वेश्चंस आ जाए, और वो जो पहले प्रॉब्लम्स कर रहे थे वो नहीं हो मेरे साथ। तो वो मतलब समझ लो कि मैं, मुझे वो सोने नहीं देता था कि और क्वेश्चंस कहां से आते कहां से आते कहां से आते थे। तो फिर मैं 2 बजे अपने आप को समझाता था कि यार सबसे इंपॉर्टेंट अभी है कि सो जाओ, क्योंकि कल उठोगे तब पढ़ेंगे ना, क्योंकि अब और वो इतना इंटरेस्टिंग हो जाता था। और वो जो मार्क्स आएंगे, और वो मार्क्स कहां से आएंगे, जब आप अकेले रहोगे और खूब मेहनत करोगे, जहां पे गलती हो रही है उसको ठीक करोगे। मतलब मैंने टेस्ट सीरीज में इतनी गलतियां की, क्योंकि मेरा पूरा सारे फर्स्ट सीरीज थे। मेरा तो ऐसा था कि कभी कभी मैं जैसे 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट, 5,
करने होते हैं। तो 5 में से 3 होते हैं उसको, और इस तरह से, तो वो मैं कभी कभी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर देता था, तो 30 आने थे तो वो 30 चले गए। तो मैं जितनी गलतियां करना है अभी टेस्ट सीरीज में कर लो, अभी आगे आगे धीरे धीरे, अभी आप टेस्ट सीरीज में बहुत गलतियां करोगे, बहुत। और हम लोग इतना गलती रिपीट करते हैं, मैं यही बताता हूं कि मैं एक क्वेश्चन था जिसको फर्स्ट टाइम जब बना रहा था जून में, तो मैं उसको 3+3=9 लिखा था, और उसकी वजह से वो न्यूमेरिकल गलत हुआ था। और मैं वही न्यूमेरिकल फिर से नवंबर में बनाया था, और एग्जैक्ट वो न्यूमेरिकल वही, जैसे जो टेस्ट सीरीजेस होते हैं उसमें एक होता है ना कि क्वेश्चन यू नॉट अटेम्प्टेड और क्वेश्चन यू रॉन्ग, तो मैं दिसंबर में फिर से जो रॉन्ग वाले क्वेश्चन था कुछ चेक कर रहा था, और फिर मैं उसको बनाया, और फिर यही गलती किया था मैं। सोचो कि मतलब हम लोग का ब्रेन का वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे होता है। और पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो मैं बता देता हूं, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज जैसे सब बोलेंगे कि पीवाईक्यूज सॉल्व करो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा कि एक काम करो, इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, कोशिश करो कि 50 पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस ये न्यूमेरिकल वाले हैं, न्यूमेरिकल वाले 50 पीवाईक्यूज डेली करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चंस आपको 50 न्यूमेरिकल वाले पीआईक्यूज सुबह उठते के साथ मार्क कर लो कि 3.1 से लेकर के 3.51, और 50 पीवाईक्यूज करने ही है। मैं एक मतलब कि वेल नोन टॉपर हैं जो मतलब कि बहुत अच्छे हैं, उनसे मैं पूछा था कि कितने मतलब क्वेश्चंस करने चाहिए, तो उन्होंने बोला था 35 कर लो बहुत है, और उनका रैंक था 29। और एक थे जिनका रैंक 9 था, मैंने उन्हें पूछा कि भैया कितना कर लें, वो बोल रहे हैं कि अराउंड 35 कर लो तो वेल हो जाएगा आराम से। उन्होंने बोला देख 35 तो बहुत कम है, कम से कम 70 to 80 कर। और 70 to 80 उन्होंने कैसे बोला कि 70 to 80 कर, क्योंकि ये रियली किए जा सकते हैं। आपको बस क्या करना पड़ेगा, जैसे कि बहुत लोगों का होता है कि सारे क्वेश्चंस को वेल डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है। गेट में हम लोग 3 घंटे में 65 क्वेश्चंस करते हैं, राइट? तो हम लोग को मेंस के न्यूमेरिकल्स को गेट के न्यूमेरिकल्स के जैसा करना होगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि हम लोगों को सब सब्जेक्ट्स नहीं लिखने पड़ेंगे, सारे थ्योरी वाले पार्ट हटाओ, बस न्यूमेरिकल्स बनाओ, कैलकुलेटर यूज करो, आंसर लाओ। न्यूमेरिकल्स बनाओ, कैलकुलेटर यूज करो, आंसर लाओ। लेकिन हाँ, आंसर लाओ, क्योंकि वो बीच के फिलर्स है ना, जो थ्योरी वाले पार्ट है, वो आप बाद में ऐड ऑन कर सकते हो, पर वो जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और इसी का फायदा होता है कि मैं अटेम्प्ट्स इतना ज्यादा किया था, वो कैसे किया था कि लास्ट में मुझे पता चल गया था कि मैं अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने क्या किया कि मैंने थ्योरी लिखना ही छोड़ दिया क्वेश्चंस में। मतलब अटेम्प्ट कर रहा था मैं बस मैथ्स 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 आंसर, मैथ्स 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 आंसर, बहुत ज्यादा तो वी हैव लिखता था, और उसके बाद सारे मैथ्स। और उसमें मुझे वो क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो 12 में मुझे 8 से 9 मिल जाता था उसमें। और मैं एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा करने के लिए, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है, वही कंक्रीट है, राइट? आप आंसर से लिख देते हो तो आपको थ्योरी के लिए 2 या 3 मार्क कटने हैं, लेकिन आप समझो कि एक थ्योरी करने के लिए गए और उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिए, तो वैसे आप, मैं ऐसे 12 क्वेश्चंस 5 भी कर लेता हूं तो अराउंड 40 मार्क्स प्लस हो गए, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सोचो कि कहां से मार्क थोड़े थोड़े भी बढ़ सकते हैं। और मेरे दोस्त मान लो कि 2 क्वेश्चंस किए 12 के और उनको 11 मिला, तो 22 मार्क के मिले, तो वो रियली मैटर करता है। मैं आपको बताता हूं कि जो कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे ब्लॉक डायग्राम वाले, जो कंट्रोल सिस्टम के फर्स्ट पार्ट है, राइट? वो मुझे आता ही नहीं है उस टाइम पे, और एक क्वेश्चन 16 मार्क का इस बार ईएससी में आ गया। मैंने, हाँ बेटर है कि जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उनको हनीफ सर बोलेंगे कि ब्लॉक डायग्राम यूज ही मत करो। हनीफ सर नहीं, हनीफ सर, राइट, हनीफ सर। तो वो बोलेंगे बैक ब्लॉक डायग्राम भूल जाओ, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाओ, आंसर लाओ। मैंने क्या किया, लास्ट के मतलब कि टाइम के लिए उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वो आता ही नहीं था। पर मैंने जो क्वेश्चन चूज किया था उसमें वो था, और वो 16 मार्क का था, मैं उसको लूज आउट नहीं करना चाहता। मैंने क्या किया, उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया, आंसर निकाला, उसको ब्लॉक डायग्राम के टर्म्स में लिखा, और फिर वहां से क्या किया, ये यहां पे मुझे आंसर पता हो गया, राइट? और वहां पे मेरा गेट मदद किया, ये मैं 3 मिनट में कर लिया था। उसके बाद क्या किया कि ब्लॉक डायग्राम को 2-3 एरोज को इधर उधर किया, बड़े बड़े इक्वेशंस लिखे, और आंसर जाके वहां से चिपका दिया। तो वो आपको करना पड़ेगा, वो उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो 2-3 इक्वेशंस बड़े बड़े देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आंसर आ गया, मतलब कि कहीं से तो किया है। ठीक, आफ्टर कंक्लूडिंग, वो बीटेक के डेज से भी हमको आता है
कि आफ्टर कंक्लूजन, आफ्टर कटिंग ऑफ, आफ्टर सिंप्लीफाइंग, ये आंसर्स आ गया, आप इसको रिवर्ट बैक करके देख लो। हाँ, लेकिन वो जो सिंपल एरोज चेंज करने के लिए बताएंगे ना, वो कम से कम थोड़ा मोड़ा सही होना चाहिए। मतलब वो गलत हो गया तो उनको पता चल गया कि ये ऐसे किया। और सिग्नल फ्लो ग्राफ जहां पे बनाओगे उसको फिर काट भी देना, कि उनको लगे कि ये बस चेक करने के लिए बनाया है। तो वो 16 मार्क में मुझे आराम से 10 दे दिया होगा उन्होंने। तो मतलब मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये समझ लो कि हम लोग को मैक्सिमम मार्क लाना है, कोई एथिक्स नहीं कि हम लोग को ऐसे मार्क लाना है, वैसे मार्क लाना है। जहां से भी मार्क जुट रहे हैं, 2 नंबर भी जुट रहे हैं, ऐड करो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यूज को ऐसा है 50 क्वेश्चन तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 50 क्वेश्चन से कम आपको करने ही नहीं पड़ने वाले। आप शुरू में 50 क्वेश्चन बनाने जाओगे, हो सकता है 20 से 25 बने, पर अगले दिन फिर 50 क्वेश्चन के लिए जाना। और वो मतलब कि कभी कभी ऐसा होगा कि आप 50 क्वेश्चन कर लोगे, जिस दिन 50 क्वेश्चन होने लगेंगे सेकेंड, और मैं ये 70-80 क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, मैं ये बोल रहा हूं कि ये सेकेंड टाइम में होने लगता है। और जब 80 क्वेश्चन आप एक दिन में करने लगोगे तो आप 800 क्वेश्चन 10 दिन में करने लगोगे। अब पीवाईक्यूज की जो बुक्स होती हैं वो 7-8 दिन में करने लगोगे, इतना स्पीड हो जाएगा लास्ट में। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो स्पीड होता है ना। तो क्या हो रहा है कि आप 7 दिन में उसको कंप्लीट किए, फिर से आए और 7 दिन के बाद फिर कंप्लीट कर रहे हो, तो पिछला वाला भूले भी नहीं थे गलती, और फिर वहां आ गए। और वो जब इतना तेज रिकर होने लगता है, मतलब मुझे अभी तक याद है, मैंने तो सारे क्वेश्चंस लिखे रखे थे कि जैसे गेट के पीवाईक्यू है राइट, उसमें 2400 क्वेश्चंस है। उसको मैंने चेंज किया था कि हर टॉपिक में कितने क्वेश्चन है। जैसे मैथ में अराउंड 54 क्वेश्चन थे मेरे वर्कबुक में, तो मुझे याद थे कि किस वर्कबुक में कितने क्वेश्चंस हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, और 54 क्वेश्चंस है मतलब कि वो करने हैं। और उसके साथ मैं 100 गेट के क्वेश्चंस करता था, तो बाकी 46 क्वेश्चंस बाकी के करने हैं। तो ऐसे मुझे याद हो गए थे कि कौन सब्जेक्ट कितने पीवाईक्यू में कितने क्वेश्चंस है। तो ऐसे रट गए थे मैंने कि मतलब कि क्वेश्चंस कर रहा, और मैं ऐसे करता था कि जिस दिन 15 नहीं हुए, मेरा तो ऐसा कोई शेड्यूल ही नहीं था कि कब उठना है कब सोना है। मेरा था कि सुबह उठना है, 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, क्लासेस जानी है। उसके बाद जब तक वो 15 क्वेश्चंस नहीं हुआ, कभी कभी क्या होता था कि फर्स्ट हाफ में आपका हुआ ही नहीं, मतलब कि 10 क्वेश्चंस भी नहीं हुए, उस दिन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, ब्रेक लो और फिर पढ़ने के लिए बैठो रात के 10 बजे भी, 11 बजे भी, हमको मतलब नहीं है। पर ये 50 क्वेश्चन उस दिन हो जाने चाहिए, क्योंकि अगले दिन के लिए 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। किसी दिन आपको फर्स्ट हाफ लगेगा कि जैसे सो के उठोगे, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ब्रेक लो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन शुरू में मत पढ़ो, जो करना है करो, पर फर्स्ट हाफ जैसे ही खत्म होगा। और मैं ये बता रहा हूं कि कभी भी ना एक दिन का फ्लो, एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है 80 डेज में। तो एक दिन का फ्लो पूरा कोई एक फेज की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। जैसे सुबह क्या हुआ, सुबह आप उठे, मेस में गए, मेस में खाना खराब हुआ या फिर कुछ भी, सुबह उठे तुरंत कुछ हो गया और उस दिन मूड ऑफ हो गया अगले 1 घंटे। उसके बाद क्या हुआ, आपको लगा कि उस दिन आप पढ़ेंगे नहीं, बहुत खराब हो गया, आज आज तो मूड ठीक करना है, कुछ नहीं। जहां लगे कि मूड खराब हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, सीधा जाओ। मैं तो 20 मिनट का एक नैप लगाता था, कुछ मत करो। वो ये 20 मिनट का नैप मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अभी भी लेता हूं। मतलब 1 मिनट, मतलब कि स्लीप साइकिल्स रेम के 17 मिनट से होते हैं, तो 17 मिनट प्लस 3 मिनट के अप्रॉक्स आपको मतलब कि शांत होने में लगता है माइंड को। तो 20 मिनट का नैप मेरे लिए इतना परफेक्ट था कि किस दिन ऐसा लगता था जैसे 8 बजे कि आज बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ सकता। पर मैं 8 बजे के बाद डिनर करता था और फिर 20 मिनट के लिए सारी लाइट्स ऑफ, शांत रूम, और 20 मिनट का रैप ले लो। मैं तो मेरे मतलब कि रूम पे एलेक्सा थी या फिर गूगल था, तो मैं बोल दिया करता था कि टेक अप सेट अ टाइमर फॉर 20 मिनट्स, और मैं 20 मिनट्स का नैप लेता था, उठता था। आप देखोगे इतना फ्रेश हो जाओगे, फिर से आप 2-3 घंटे पढ़ जाओगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक्स लो, स्ट्रिक्स पे नहीं जाना, पुश नहीं करना अपने आप को कि नहीं पढ़ाई हो रहा है फिर भी पढ़ेंगे, या फिर अब थक गए हैं फिर भी पढ़ेंगे। ब्रेक लो, ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखोगे कि 20 मिनट का नैप आपको लग रहा होगा कि 20 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, पर ये 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा जब 3 घंटे दे देगा तो आपको लगेगा कि ये बहुत बेनिफिशियल है। मैं सुनील सर को ही बोला था कि मैं 8 घंटे का, मैं एक टाइम आ गया था कि 9 घंटे से 10 घंटे सोने लगा था, क्योंकि मैं जब ज्यादा स्ट्रेस में होता हूं तो ज्यादा सोता हूं। तो वो स्ट्रेस के वजह से जो ज्यादा सोना है वो यही से आता था कि पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बने, 10 क्वेश्चंस नहीं बने, आज मूड ऑफ हो गया या फिर कुछ भी हो गया कि आज आंटी नहीं आई, आज मेस में बाहर जाके खाना पड़ रहा है और
मैं प्रिफर करता हूँ हमेशा अकेले रहने का, तो बाहर गए और उसकी वजह से पूरा माइंड इधर उधर हो गया। अब उसके बाद मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, मैं फिर से जाता था आधे घंटे, उस दिन आधे घंटे का या फिर 40 मिनट्स का नैप लेता था। 40 मिनट्स के बाद उठता था, शांत हो जाता था। मैं सुबह कोशिश करो कि मेडिटेट करने का, मेडिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 10 से 15 मिनट करो, बहुत है। जितना भी हो सकता है अकेले रहो और ये नैप्स लो, नैप्स कंप्लीट करो, पढ़ाई करो, ब्रेक्स लो। कि मींस मेडी जी के मुझे एक सर ने बोला था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कर सकते हो तो वो कर सकते हो। जब आप नहीं टेबल पे बैठे हो, नहीं हो रहा है पढ़ाई, सब कुछ बंद करो, 10 बार बस आंख बंद करके सांस लो लंबी लंबी। कई बार क्या होता है कि, और इसलिए मैं मतलब कि किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, पर कोशिश करो कि लाइब्रेरीज अवॉइड करो यदि अकेले रूम में रहते हो तो। क्योंकि लाइब्रेरीज जो यहाँ पे हैं वो बहुत ज्यादा मतलब कि उनमें वेंटिलेशन नहीं है। मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था दोस्तों के बोलने से, और मैं 2 दिन गया और मैं इतना सोया लाइब्रेरी में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन आता ही नहीं है। आप खा के जाओगे, 1 घंटे में नींद आ जाना आपको, और बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आपका ब्रेन धीरे 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 स्लो डाउन होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन होती नहीं, वो एक वेंटिलेशन होता है वो छोटा सा, और पूरे लाइब्रेरीज सफोकेट होते रहती है। तो इसलिए, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैं बोल रहा हूं। तो कोशिश करो कि लाइब्रेरीज अवॉइड करो, और वो वही बोले थे कि 10 बार लंबी लंबी सांसें लो। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ऑक्सीजनेट हो जाएगा, और आप ब्रेक ले लोगे, थोड़ा सा माइन्यूट सा ब्रेक होगा पर ब्रेक ले लोगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द सेम टाइम यूज अ लॉट ऑफ स्टडिंग मेथड्स, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, कि 40-20 रूल, कि 40 मिनट्स पढ़ेंगे, 20 मिनट्स ब्रेक लेंगे। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि 40-20 रूल, कि आप जब शुरू में बैठोगे सुबह 8 बजे, तो आप बहुत एनर्जाइज हो जाओगे। आप 40 मिनट जैसे खत्म भी हो गए, तो आपको लगेगा कि अभी हम और 20 मिनट्स पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको रुकना है, आपको शुरू से वो फॉलो करना है कि 40-20, 40-20, मतलब शुरू में आपको लगेगा कि मैं और पढ़ सकता हूं, कि अभी तो फ्रेश ही फील कर रहा हूं, 40 मिनट तो हुए हैं, वहां पे रुक जाओ। क्योंकि वही वो एनर्जीज आपको आगे रखनी है लास्ट तक। रात को जब 10 बजे पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो वही 40 मिनट्स आपको बोलेंगे कि बस 40 मिनट पढ़ना है, उसके बाद फिर 20 मिनट कुछ कर सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो अभी भी मेरे फोन में यूट्यूब नहीं है, तो कोशिश करो कि वो हटा लो, जितना हो सकता है यूट्यूब हटा लो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टाइप का भी सोशल मीडिया अभी अवॉइड करो, इफ इट इज नॉट बिलोंगिंग टू मेंस और एनीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट मेथड है कि टेक हेल्प। टेक हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट। और हम लोग को बहुत बार लगता है कि जिनसे हेल्प मांग रहे हैं वो क्या सोचेंगे या फिर कौन होगा। मैं तो अभी भी मुझे लगता है कि कोई मेरा थोड़ा सा भी हेल्प कर देता है, मैं सीधा उसको फोन करता हूं या फिर सीधा मैसेज करता हूं कि यहाँ पे मुझे हेल्प चाहिए, बता दो। और मैं आपको बता दूं कि मतलब कि अभी तो सब कुछ हो गया तो कूल है। मैं 5 दिसंबर को, अभी मुझे याद है कि 5 दिसंबर को मैं पढ़ते पढ़ते इतना थक गया था कि, और मेरा सुनील सर से कुछ ज्यादा कनेक्शन था उस समय में, तो मैं उनको मैसेज किया था कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो सोचो, मैं मतलब कि इतना कैजुअल होकर सर से बोलता था कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और लिटरली उस समय पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो वो बोले कि अंकित फोन करो शाम को। फिर हम शाम को फोन किए, तो उनको पता चल गया कि ये थोड़ा सा भी एग्जॉस्ट हो गया, थक गया। तो बोले एक काम करो, एक दिन का प्रॉपर ब्रेक लो, पढ़ाई मत करो। और ये दिसंबर 6 का बात है, मतलब वहां पे मुझे 1 महीने बाद गेट देना, और वो बोल रहे हैं एक दिन पढ़ाई मत करो, जो करना है करो, बस पढ़ाई मत करो, पढ़ाई के ध्यान मत दो। और मैं शाम को वो 7 बजे बात किया था। मैं अगले दिन मैं यहाँ पे हरिद्वार चला गया, एक दिन पूरा हरिद्वार घूमा, आया, फिर से रिफ्रेश हो चुका था। तो वो मुझे सुनील सर से वहां पे आया, राइट। और मैं खुद से सोच अपने आप को पुश करता 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 नहीं होता। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी यूट्यूब के वीडियोस देख लो या फिर कहीं और से देख लो, उससे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके रियल हेल्पर्स हैं उनके पास जाओ और वहां से हेल्प लो। सर ये नहीं हो रहा है, और किसी को मतलब कि फर्क नहीं पड़ता। सुनील सर मतलब कि हर साल 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, कोई भी टीचर। तो 50,000 पीपल इज लाइक रिवर, स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक दो होते हैं जो याद आ जाते हैं, रह जाते हैं, और वो होते हैं जो रैंक लाते हैं, नहीं कि वो जो स्टूपिड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कोशिश करो कि मतलब कि जिनसे भी हेल्प मिल सके, कहीं से भी रीच आउट करो। अभी तो रीच आउट करना इतना आसान हो गया कि मत पूछो। तो कहीं से भी रीच आउट करो, और कितना भी स्टूपिड क्वेश्चन है, स्टूपिड क्वेश्चन है तो कम से कम ग्रुप यूज मत करना, डीएम कि ये मतलब प्रॉब्लम है और इसको हमको इसको सॉल्व कर सकते हैं। और पीपल, यू नो कि यू विल नो कि पीपल आर ईगर टू हेल्प यू।
मतलब जो बहुत बड़े मतलब कि अच्छे अच्छे पद पे चले गए हैं, वो चाहते हैं हेल्प करना, पर आपको एक बार उनको रीच आउट करना पड़ेगा, राइट? वो खुद से बहुत चीज नहीं बोलेंगे, पर आप रीच आउट करोगे। मैं खुद पर्सनली, जैसे मुझे कोई मैसेज भी करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले नहीं करता था, थोड़ा ओल्ड स्कूल हो गया हूँ। तो मुझे कोई 4 भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ दिया और मुझे लग गया कि ये सीरियस है, तो मैं सीधा बोल देता हूँ कि एक काम करो, 10 बजे के बाद फोन ही कर लो, ये नंबर में बस शेयर मत करना। क्योंकि मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीच आउट करो। और सेम विद सुनील सर, सुनील सर से भी मेरी इतनी कनेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि मैं मतलब छोटे छोटे स्टूपिड क्वेश्चंस भी उनको बताता था। जैसे एक बार मेरे टेस्ट में, एक गेट के टेस्ट में मैंने 100% स्कोर कर दिया था, मतलब कि वो पार्ट सिलेबस टेस्ट में, वो सितंबर का बात है। मैंने टीचर्स को भेज दिया कि सर देखिए ये हो गया, तो वो बहुत खुश हो गए थे। तो वहां से वो धीरे धीरे अब अपने अप डाउन सब बताते चलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करने लगे कि हाँ ये बंदा सीरियस तो है, मतलब फीडबैक्स बता रहा है। और फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फीडबैक कहीं से लगा सकते हो, टेस्ट सीरीज से लगा सकते हो, टीचर से लगा सकते हो, पर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कर रहे हो उसका मतलब रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका ध्यान दो, जितना हो सकता है उतना ध्यान दो फीडबैक लगाने का। उसके अलावा सेम और रिसोर्सेज के बारे में मैं बस बोलूंगा कि मैंने जो रिसोर्सेज फॉलो किए थे, बहुत लोग अभी आप रिसोर्सेज कर रहे होगे, फॉर रिसोर्सेज के लिए मैंने जो फॉलो किया था, और ये मैं बोल रहा हूँ ना 50 क्वेश्चंस करने के लिए, अभी आपके 6 घंटे के क्लासेस होंगे, अभी हो रहे हैं कि होंगे, अभी हो रहे हैं, तब तो 6 घंटे के क्लासेस हो रहे हैं ना, तो 6 घंटे के बाद मुझे नहीं पता, मैं 8 से 9 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता एक दिन में, क्योंकि मैंने गेट भी दे रखा था, तो उसके बाद मैं पढ़ने का मन ही नहीं करता था, तो 8 से 9 घंटे ही पढ़ना होता था। अब आप 6 घंटे क्लासेस में कर रहे हो और उसके बच्चा आपके 2 घंटे, 2 घंटे में आप 50 क्वेश्चंस तो करने से रहे, कभी नहीं होगा। तो आपको बहुत रीजनेबल रहना पड़ेगा कि कैसे 50 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस नहीं करोगे तो नहीं होगा, रैंक नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं यहां से यहां आना है, तो वो होगा तो नहीं। मतलब आपको भले रोना आ रहा है, रो जाओ, लेकिन 50 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। दैट इज द ब्रूटल ट्रूथ। यदि उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर कोई बोल रहा है कि मत करो, हो जाता है, ऐसे कर लो, वैसे हो जाता है, वैसा कुछ नहीं होता। 50 क्वेश्चंस, वो भी PYQ से, तो उसके और वो करने पड़ेंगे, और वो करो। अनसॉल्व वर्कबुक सर करवा रहे होंगे राइट यहाँ पे, तो अनसॉल्व वर्कबुक कैसे कर रहे हैं वो 50 क्वेश्चंस। अनसॉल्व के जो पेपर्स हैं, मतलब कि अराउंड एक क्लासेस में ये बहुत सही होता है कि टीचर्स के पास एक कंस्ट्रेंट है कि जब तक क्लास का लास्ट बंदा भी नहीं बनाएगा तब तक वो बोर्ड पे नहीं बना सकते। तो एक क्वेश्चंस को करने के लिए भी उनको, अच्छे क्वेश्चंस को 1 घंटे लग जाते हैं। और आप ये जो बोले ना, मैं गेट वाला टेक्निक से 5 मिनट में बना सकते हो अपने नोट्स में। और फिर वो जो 55 मिनट्स बचे हैं उसमें वो PYQ सॉल्व करोगे। ये 5 मिनट में कैसे बनाओगे? आने से पहले देख लो कि अगले दिन जो 15 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हो, आपके पास नोट सारे हैं। अब वो थ्योरी नहीं पढ़ा रहे सर क्लास में, आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, बस सर यहाँ पे वो अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कोशिश करो कि आने से पहले अगले 15 क्वेश्चंस को रूम पे ही ट्राई कर लो। 15 क्वेश्चंस में देखोगे कि मतलब कि इफ यू आर फेयरली एनफ, मतलब कि थोड़ा सा भी पढ़े होगे, तो 6 से 7 क्वेश्चंस तो बन जाने हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चंस आप यहाँ 2 मिनट में कर लोगे, तो वहां पे टाइम बहुत बचेगा, 3 से 4 घंटे। तो क्लास में जो क्वेश्चंस हो गए, और मेंस के नोट्स नहीं बनते, मतलब मेंस में लिटरली क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं, तो नोट्स पे ध्यान मत दो। शुरू के 5 मिनट में बना लो क्वेश्चंस, आपको पता चल गया। उसके बाद आप जब सब समझा रहे हो बस वहां देखना। उसके बाद जितना भी टाइम बचा उसमें ये 50 क्वेश्चंस कवर करो क्लास में, क्योंकि ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको करना ही पड़ेगा। और क्लास के अलावा जो 2 घंटे हैं उसमें तो नहीं होने वाला, तो वो वहां पे आपको क्लास के बीच में करना पड़ेगा। क्लास के बीच में करना पड़ेगा, जाकर रूम पे तुरंत करना पड़ेगा, कैसे भी करो, वहां पे टाइम निकालना पड़ेगा, वो करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि कल, मैं इसको ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन वो बताएं तो मुझे 2-3 बोले, तो मुझे लगता है कि मींस एवरीवन हैज देयर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, राइट? मेरा स्ट्रेंथ था क्योंकि मैं 2x पे वीडियोस देख लेता था। मैंने सारे लगभग वीडियोस 2x पे लगा के रखे थे पहले, तो वो मेरा स्ट्रेंथ था। पता नहीं कैसा स्ट्रेंथ है, बस स्ट्रेंथ था। वो मुझे फायदा किया कि मेरा पिछली बार सारे कोचिंग मेंस वाले ऑनलाइन हो गए थे, तो मैं जो क्वेश्चंस ये कर लेता था ना, जो क्वेश्चंस बस कर लेता था, थ्योरी वाले पार्ट नहीं, जो क्वेश्चंस मैं कर लेता था उसको मैं 2x पे देख लेता था, और मैं मतलब 90% समझ जाता था वहां पे कि सर ने एक्स्ट्रा क्या करवाया।
तो वहां से मैं टाइम बचाता था। मैं बोल रहा हूं ना, ये सब तब होगा जब आप बहुत डिटरमाइंड होगे मेंस के लिए, मार्क लाने के लिए। और किसी को पता नहीं होता है कि आपका रैंक आने वाला है नहीं आने वाला है, अचानक से आपका रैंक 6 आ जाता है और फिर लगता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, ठीक हो गया था, लग रहा था मतलब कि गलती बीच में किए होंगे लेकिन रैंक आ गया, मतलब कि आधे चीजें तो ठीक किया। और मेरे प्लान्स, और मैं बता रहा हूं कि ये इतने आसान नहीं है। इसमें ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा प्लान है, मतलब ये लिटरली मेरा प्लान है पूरा। तो मुझे पता है कि ये ऐसे नहीं होता है, जितना मैं इजीली बोल रहा हूं ये नहीं होगा। तो लेकिन ये है कि बाकी टॉपर से आप जब YouTube में पढ़ोगे, राइट, या YouTube में देखोगे या फिर कहीं पे देखोगे, तो वो भी आपको ये बताएंगे, पर उनमें भी लूप होल्स हैं, क्योंकि और उनके लूप होल्स उनको पता है कि इसमें कहां पे फॉलोआउट्स हैं। तो वो फॉलोआउट्स के लिए आपको जैसे ही प्रॉब्लम हुआ तो इधर सुनील सर से थ्रू मेरे रीच कर लेना, या फिर सुनील सर से डायरेक्ट पूछ लेना कि सर इसमें इसमें यहां प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम छोटे छोटे हैं, पर मैं सारे अभी नहीं बता सकता, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीधा रीच आउट करो। और क्योंकि मेरा प्लान है तो हमको पूरा पता है कि इसमें कैसे इसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। पर आप किसी समझ लो कि बहुत अच्छे टॉपर से सुन लिए और फिर वो आपका उनका प्लान है, आपका प्लान है नहीं, अब रीच आउट कर नहीं सकते हो। अब प्लान ले लिए और उसको इंप्लीमेंट कर दिया, पता चला कि बीच में फंस गए और आपको पता नहीं है, वो अभिमन्यु जैसा हो जाएगा कि आप बस आधा प्लान लेके लड़ने चले गए और बीच में फंस गए, फिर लास्ट वाला आपको पता नहीं था। अब आप पीछे नहीं जा सकते हो क्योंकि काफी टाइम निकल गया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी मत सोचो कि कौन सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सब्जेक्ट मेरा टफ है। ये बहुत ज्यादा है। जैसे सबको लग रहा होगा कि मेजरमेंट्स मेरा वीक है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, और बेसिक इलेक्ट्रिकल लग रहा होगा कि बहुत वीक है, बहुत ज्यादा, कि इसमें तो कुछ आता ही नहीं है। मेजरमेंट में मैं बताऊंगा कि मेजरमेंट में 50% क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गाइज, मतलब इलेक्ट्रिकल वालों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। 50% क्वेश्चन वो लोग बस ट्रांसड्यूसर से पूछते हैं। ये आप तब पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू को बहुत स्टडी करोगे। 50% क्वेश्चन वो मेजरमेंट का बस ट्रांसड्यूसर से पूछते हैं, और ट्रांसड्यूसर में एक पार्ट है स्ट्रेन गेज, वो उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप बस टारगेट करो ट्रांसड्यूसर को शुरू में, और ट्रांसड्यूसर बहुत ईजी है, मतलब वो एक चैप्टर है 5 चैप्टर्स में और वो आपको 50% दे रहा है, तो फिर बाकी सबको पढ़ना ही क्यों? उसके मतलब पढ़ेंगे जब टाइम बचेगा तो पढ़ेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले पीवाईक्यू में ट्रांसड्यूसर को टारगेट करना है, वहां से 50% ले लेना है, उसमें से जितना स्कोर करना है कर लेना है, बाकी टाइम बचा तो फर्स्ट वाले प्रिसीजन एक्यूरेसी वाले पार्ट में वो भी इजी होता है, उसको कवर करो, फिर धीरे धीरे टैकल करो। मैंने तो एनर्जी मीटर्स के फॉर्मूलाज बस रटे थे, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, या फिर बाकी मीटर्स, एनर्जी मीटर्स, उसके फॉर्मूला होते हैं। एक टर्म और उसमें एसी ब्रिजेस देख लेना, मैं अभी बता दूंगा, मतलब ब्रीफली बता रहा हूं, एक बार नोट कर, मतलब मैं ये शेयर कर दूंगा कहीं पे भी, कहीं पे भी रीच आउट कर लेना, शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं ब्रीफली बता दे रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कि कौन कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फर्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर जंक्शंस सुन लो, मतलब कि 90% तुम लोगों को पता होगा, बस कौन कौन से नहीं पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको टाइम बचा तभी पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। और उसको नहीं पढ़ेंगे इसका मतलब है कि उसके फॉर्मूला सब आने चाहिए, क्योंकि यदि उसमें से कोई न्यूमेरिकल आ गया, तो मैं बता रहा हूं ना, न्यूमेरिकल्स में थ्योरी का मतलब नहीं है, आप न्यूमेरिकल में बस क्वेश्चंस बना दो तो आपको 12 में 8 मिल जाने, तो फॉर्मूलाज रट लो उसके, और उसके अलावा कुछ मत करना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर जंक्शंस और मॉसफेट्स के न्यूमेरिकल्स, जो फील्ड वीएफवी वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो कर लेना। सीमॉस थोड़ा सा देख लेना, उसके पास न्यूमेरिकल्स। और सोलर सेल गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वो गेट में पूछे जा रहे हैं सोलर सेल, और ईएससी में भी पिछले साल उन्होंने पूछ दिया था, तो सोलर सेल बस देख लेना। एनालॉग में, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए, एनालॉग में स्मॉल सिग्नल एनालिसिस से वो लोग बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन हर साल आता है, और उसमें वो क्या बोलते हैं, पहले डीसी एनालिसिस करने के लिए, मतलब वो तुमको मैं बोल रहा हूं ना, पीवाईक्यूज आप उठाओगे तो लिटरली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एक क्वेश्चन होगा, उसका फॉर्मेट ये होगा। वो क्या करते हैं, पहले बोलेंगे कि डीसी एनालिसिस करो, उसका आईसी निकालो, बीटा निकालो, कौन से रीजन में वो निकालो, उसके बाद उसका स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर दो, और वो 16 से 20 नंबर का आता है, और ये हर साल पूछ रहे हैं वो। तो आपको क्या करना है कि पूरा नहीं पढ़ना है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, बस वो क्वेश्चंस बनाना सीखना चाहिए कि ये क्वेश्चंस आएगा और ये क्वेश्चंस कैसे मैं बना सकता हूं, बस इतना देखो, तो वो कर लो। डायोड में बस जीनर का पार्ट पढ़ना, फर्स्ट वाला पार्ट मत पढ़ना, वो बहुत मतलब बहुत फार्मूलाज रटने पड़ेंगे उसमें, और वो भी मतलब कि टीयूएफ वाले फार्मूलाज वो मत करना। ओपैम आपको नंबर दिलवाएगा,
ओपैम इजी टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स हर साल आते हैं, नंबर दिलवाएगा, थोड़ा सा लेंदी रहेगा पर बहुत सॉर्टेड है, मतलब कि उसके क्वेश्चंस के आंसर यदि बन गए तो वो बन जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। ये एनालॉग का पार्ट है। उसके अलावा एनालॉग में जो भी है, जैसे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का वो जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो हनीफ सर से पढ़े हो सब के सब, तो हनीफ सर एक तो आपको मतलब कि एग्जैक्ट एनालिसिस भी कराते हैं, छोड़ दो उसको, मैं बता रहा हूं। और मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको क्या क्या छोड़ना है, बहुत चीज छोड़ देना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो भी पार्ट है कोशिश करो कि उसको छोड़ देने का, और उसको लास्ट के लिए बचा के रखो कि ये सब अच्छे से हो जाएगा। एक और टॉपिक मैं छोड़ चुका हूं, तो उसको आप पीवाईक्यू से देखो कि ये पूछ रहे हैं वो लोग, नहीं पूछ रहे तो उसके बाद ऐड ऑन करना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स गाइस के लिए बस ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ो और डीसी मशीन पढ़ो शुरू में। उसके अलावा इंडक्शन मशीन्स और सिंक्रोनस तो छूना मत, सिंक्रोनस पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो लोग पूछ ही नहीं रहे, 3 साल से नहीं पूछे, इस बार में नहीं पूछेंगे, सर आपको पढ़ाएंगे पर उसका अब इतना आप उसको मतलब कि करने जाओगे तो आपके ट्रांसफॉर्मर्स नहीं होने वाले। तो ट्रांसफॉर्मर्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसका एनालिसिस करो, ट्रांसफॉर्मर्स से एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको बना देना है, और वो कुछ सिंपल होगा। तो और ये होता है ना कि एक बार जैसे सब्जेक्ट्स इजी लगने लगे, जैसे BEEE का आपको वो ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट होने लगा, तो आप फिर मतलब कि ये तो डर खत्म हो जाएगा BEEE से। 90% क्या होगा ना कि आपको एक बार पढ़ना होगा वो क्वेश्चन पेपर मेंस में, और उसको जज करना होगा कि ये करना है कि नहीं करना है। आप BEEE करके नहीं गए, क्वेश्चन इजी आ गया ट्रांसफॉर्मर से, बहुत इजी क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है, पर आपके मन में है कि BEEE से क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ना है, क्योंकि BEEE से मैंने पढ़ के नहीं आया। तो वो नहीं होना चाहिए, डर खत्म हो जाना चाहिए कि एक बार देख लूं, हो सकता है, और फर्स्ट प्रिंसिपल लगा लूं, मुझे फॉर्मूला रटे हुए तो एक बार लगा लो, 10 नंबर में 5 नंबर भी दे देगा प्रोफेसर, राइट? ऐसे करना है। उसके बाद मटेरियल साइंस में, मटेरियल साइंस आपको सबसे ज्यादा एज देगा यदि आपको थ्योरी के क्वेश्चंस लिखने आते हैं तो। मटेरियल साइंस बहुत लोग पढ़ेंगे नहीं और उसको लास्ट में के लिए बचा के रखेंगे, और क्योंकि लगेगा कि बहुत बोरिंग है, बहुत थ्योरी है, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे अच्छे वाले। मटेरियल साइंस को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग होते जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप एक बार रिलेट करने लगोगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिकलिज्म, तो वो एक ही क्वेश्चन को वो रिपीट होता है, यहां पे भी, वहां पे भी, यहां पे भी, वहां पे भी, वो कर लो, और वो पोलराइजेशन के फॉर्मूलाज रट लो, वहां से ही पूरा मटेरियल साइंस बन जाएगा। और कुछ मिलर इंडिसेस के क्वेश्चंस कभी कभी देख लिया करो। और वो मैं बता रहा हूं ना, पेपर 2 में मेरा सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि पेपर 2 इज लाइक कि आपको कितना आप एक्सटेंड कर सकते हो। मैं कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया हूं, मतलब कि अभी मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, पर उस समय मैं 12th के बाद छोड़ दिया था, मैंने फिर भी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था, और मैं प्रोग्रामिंग नहीं लिखा था, उसका एल्गोरिथम लिखा था, और वो मैं मतलब रिटन में इंग्लिश में लिखा था कि इसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, और उसमें भी मुझे मार्क मिल गए। तो कोशिश करो कि जहां से भी मार्क मिल रहे लिखो, मतलब कि 4 पेज का एल्गोरिथम लिख दिया, राइट, 10 नंबर का है, एल्गोरिथम लिख दिया, टीचर को लगा कि इसको आता है, कोडिंग नहीं आता पर इसको एल्गोरिथम आ रहा है, ये मतलब लॉजिक ठीक लिखा, वो 10 नंबर में 4 नंबर देगा, 5 नंबर देगा। इतना कर लो, 4 पॉइंट्स लिखने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक्स्ट्रा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हाँ, EMI में ट्रांसड्यूसर्स पढ़ो, दूसरा पार्ट है उसमें AC ब्रिजेस और DC ब्रिजेस होंगे, उसको पढ़ लो अच्छे से, उसको रटना नहीं है, बस सॉल्व करना आना चाहिए कि AC ब्रिजेस कैसे जब प्री के लिए पढ़ते हैं तो हमको रटना होता है कुछ कुछ, इसमें रटना नहीं है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि AC ब्रिजेस DC ब्रिजेस को सॉल्व करना आना चाहिए, उसमें मीश व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे लगाते हैं, या फिर पैरेलल इंपेडेंस और एटेन्यूएशन, मतलब वो कैसे निकालते हैं, वो सब देखना है। और मेजरमेंट ऑफ एनर्जी और पावर्स को लास्ट के लिए बचा के रखो, मेरे से नहीं हुआ था, यदि टाइम मिला तो तुम लोग कर लेना, पर मेरे से नहीं हो पाया था। नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क में क्योंकि गेट के लिए छोड़ के रखोगे, लैपलास से ट्रांजिएंट सॉल्व करना आना चाहिए। मैं गेट तक उसको सॉल्व नहीं किया था, गेट तक वही हम लोग करते हैं, एक हनीफ सर बहुत अच्छा फॉर्मूला, नहीं किरण सर बहुत अच्छा फॉर्मूला बता देते हैं, वो I इंफिनिटी माइनस I0 e का पावर माइनस t बाय टाउ, तो वो फॉर्मूला अब भूल जाओ, क्योंकि वो ये फिर से 12 या फिर 16 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही है वहां से, मतलब, और वो क्वेश्चन बहुत इजी होगा, वो क्वेश्चन ट्रांजिएंट से होगा, वो क्वेश्चन ऑन द लीग होगा, वो बस ट्रेस करेंगे कि आप PYQ बना के आए हो तो ये बन जाएगा। तो अब क्या करना है कि यहां पे क्या होगा कि सबको लगेगा कि लैपलास यार पूरा शुरू से सीखना पड़ेगा, आपको बस 2-3 क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है कि कैसे बन रहा है, और उसके बाद आप किसी में भी लैपलास लगाओगे, सब एक ही क्वेश्चन टाइप के बनते हैं, तो वो वहां से लैपलास वाले क्वेश्चंस को आपको करने ही पड़ेंगे। फिर बेसिक्स में स्टार डेल्टा कन्वर्जेंस करना सीख लो,
और वो मैंने तो ऐसे रट लिया था, क्योंकि 90% क्या होता है कि स्टार डेल्टा बहुत टफ होते हैं, पर उसमें होता है कि रेसिस्टेंस का सेम वैल्यूज होता है। तो मैं ऐसे रट लिया था कि स्टार टू डेल्टा जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं रेसिस्टर को, राइट, डेल्टास आर इन अर्थ, स्टार्स इन द फार अवे, तो रेसिस्टर 3 टाइम्स हो जाएंगे, और फिर डेल्टा से स्टार पे कन्वर्ट कर रहे होते तो 3 टाइम्स बाहर चले जाएंगे, तो R/3 हो जाएगा। तो कैसे भी लूप लगाओ और उसको रट लो, क्योंकि स्टार डेल्टा कन्वर्जेंस के फॉर्मूलाज अच्छे होते हैं, पर 90% आपको फॉर्मूला जरूरत नहीं पड़ेंगे, वो R दे देते हैं, या फिर कुछ 3 दे देते हैं। तो और वहां पे जैसे जो नॉर्मल बंदा होगा उसको लगेगा कि यार ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, छोड़ देते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे आपको एक्स्ट्रा एज मिल रहा है, वो छोटे छोटे के लिए जाओ। एसी के न्यूमेरिकल्स देख लो कि मुझे तो अभी तक वो पैरेलल मैं कोई भी फॉर्मूला देते हैं मैं सीधा उसका इंपेडेंस निकालता हूं पहले, और मतलब कि वाई निकालना होता है तो 1/z करता हूं अभी तक। मुझे अभी इसरो में उन लोगों ने पूछा भी कि एक काम करो, पैरेलल सर्किट है, वाई निकाल लो, तुरंत बना लोगे इसका आंसर, वो बोर्ड पे करवाते हैं। तो मैं बोला सर कि मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाहता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने जेड निकाला, और फिर लास्ट में जेड को 1/y किया, और फिर वहां से आंसर निकाला, और वो सही किया। तो मतलब कि एसी के न्यूमेरिकल्स करो और उसको कंप्लीट करो। फिर ग्राफ को लास्ट में बचा के रखो, छोड़ दो, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें लिए। 2 पोर्ट्स और रेजोनेंस के क्वेश्चंस करो, रेजोनेंस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 10 नंबर का क्वेश्चन रेजोनेंस से पूछेंगे वो लोग। एसी पूरा छोड़ दो, अभी नहीं टाइम मिल रहा है, पर ग्राफ मतलब कि वो रेजोनेंस के क्वेश्चंस करो, क्योंकि रेजोनेंस के क्वेश्चंस इजी होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से तुरंत बन जाएंगे, और वो आपको 10 नंबर 12 नंबर तुरंत दिलवा देंगे। डिजिटल सब कुछ करो, बस लॉजिक फैमिलीज के थ्योरीज पढ़ लो, लॉजिक फैमिलीज के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। लॉजिक वो पीआईक्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस लॉजिक फैमिली से पूछ रहे हैं, तो वहां से तो बस थ्योरी करो। और उसके अलावा तो डिजिटल बहुत ईजी होता है, तो डिजिटल के सारे क्वेश्चंस करो अच्छे से, और बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 में जाते हैं। पेपर 2 अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूछा जा रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको रेड्डी सर काफी मतलब अलग अलग जगह से एक्सपोज करवाएंगे कि ये भी पढ़ लो, एसएनआर भी पढ़ लो, वो आपको बहुत चीज बताएंगे, पर आपको सब कुछ एक फेज से नहीं पढ़ना है, राइट। आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, और उससे देखना है कि कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको पहले पढ़ो, बाकी सबको करो, क्योंकि सर बताएंगे रिसीवर्स में बहुत अच्छा से एफओएम निकालना। अभी आप पढ़ो, मैं पिछली बार भी पढ़ा था तो मुझे याद है सब कुछ। एफओएम निकालना बहुत अच्छे पढ़ाएंगे, और यहां से फिगर ऑफ मेरिट या फिर एसएनआर का वैल्यू निकालने बोलते हैं वो है। लेकिन आपको कुछ भी पढ़ रहे हो इस 3 मंथ्स में, देखो कि हम उसको पेपर में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो जैसे मेरे दोस्त उसको अच्छे से कर लिए थे, और वो उसको रिप्रोड्यूस पेपर में कर सकते थे। मैं देखा कि 3 पेज का डेरिवेशन है, मेरे से नहीं होना ये क्वेश्चन वहां पे, तो मैं उसको सीधा फर्स्ट डे में ही मतलब कि रखा था कि लास्ट के लिए देख लिया, और मैं लास्ट के 3 दिन में उसको बस देख लिया था कि मतलब कि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रट लिए थे मैंने, कि फिर वही है कि इधर से भी शुरू करेंगे, इधर से भी शुरू करेंगे, और बाकी कई बीच में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो वहां पे नहीं देखते, हमको ऐसा लगता है। तो वो कर लो। एनालॉग कम्युनिकेशन रिसीवर तक सारा पढ़ लो, बेसिकली वो फॉर्मूलाज रट लो, बहुत इजी होते हैं। एंगल मॉड्यूलेशंस के आपको बस वो 2 फॉर्मूलाज पता होने चाहिए जो जेनेरिक फॉर्मूलाज होते हैं, बाकी सब उस पे इंप्लीमेंट करो। फिर डिजिटल में नॉइज के फॉर्मूलाज रटो, नॉइज से वो क्वेश्चन पूछेंगे, और एक फॉर्मूला होता है उसमें जो डीमीन के फॉर्मूलाज होते हैं कि Q अंडर रूट ऑफ EB बाय N नॉट, वो वाले फॉर्मूलाज डीमीन अभी भूल रहे हैं, वो कर लो। तो वैसे नॉइज के फॉर्मूलाज रट लो कि बीपीएस के लिए वो और जेनरिक फॉर्मूलाज याद रखो, जैसे बीपीएस के है, राइट, तो वहां पे ही आप डेरिवेट कर सकते हो कि एक यहां होगा, एक यहां होगा, ये रूट ईबी, ये रूट ईबी, तो डीमीन यहां से 2 रूट ईबी आ गया, उसको वो फॉर्मूला में पुट कर लो। तो हम बोले जेनरिक फॉर्मूला याद रखो, ग्राफ्स याद रखो, इंप्लीमेंट करो, सारे फॉर्मूलाज रटने नहीं है। और फिर जैसे समझ लो कि इसको एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ में डालना है, राइट, तो क्यू को वो अप्रोक्सीमेट करते हैं ईबी माइनस ईबी बाय एन टाइप कुछ, तो उसका भी जनरल फॉर्मूला रट लो, फिर ग्राफ बनाओ, फिर इसको यहां ले जाओ, फिर यहां से यहां कन्वर्ट करो। क्यू से एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री का कन्वर्जेंस भी याद रखना, वो वहां से पूछते हैं। कभी कभी क्यू बोलेंगे कि इसको एरर फंक्शन के टर्म में लिखो, तो वो कन्वर्जेंस याद आना चाहिए। तो वो देखो कि पीवाईक्यू में क्या पूछ रहे हैं, और पीवाईक्यू में पूछ रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं, उसको बस देखो। हाँ, वो और पीसीएम पढ़ो। पीसीएम जो फर्स्ट पार्टी होता है, डीपीसीएम, डीएम का बस वो पार्ट पढ़ो कि डी मैक्स कितना होना चाहिए डेल्टा बाय वो वाला पर, वो फॉर्मूला रटो, और उसको देखो कि वो मींस ग्रेजुअल एरर और स्लोप ओवरलोड एरर का कंडीशन क्या है।
बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं पर पढ़ो बस। तो पीसीएम और डीपीसीएम, और पता है ये जितना मैं बता रहा हूं ये सब मैंने एनालाइज किया है पीवाईक्यू बना बना के, कि वो कहां से पूछते हैं, क्या पूछते हैं। और जो मतलब कि उसमें बहुत अच्छा सेइंग है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का, कि द बेस्ट स्टडी इज नो स्टडी, द बेस्ट पार्ट इज नो पार्ट। जैसे आप बेस्ट स्टडी कर सकते हो कि वो चीज पढ़ो ही मत, बेस्ट है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो सब चीज को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, लास्ट के लिए बचा के रखो। देखो कि जैसे जो पीवाईक्यूज में बार बार आ रहा है उसको पहले पढ़ो, पीवाईक्यूज के अलावा जो समझ लो कि टेस्ट सीरीज में आए वो पहले करो, उसके बाद टाइम बचता है तो बाकी चीजों के लिए जाओ, क्योंकि बाकी चीज करने के चक्कर में ये छूट गया ना तो क्वेश्चन यहां से आने वाले, और फिर आप सब कुछ पढ़ रहे थे पर आपके पीवाईक्यूज हुए नहीं, इसलिए क्वेश्चन वहां बने नहीं। तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का विजय सर पढ़ा रहे हैं, राइट? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन विजय सर पढ़ा रहे हैं। विजय सर के नोट्स मोर देन एनफ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपको अवॉइड थ्योरी बुक्स इफ यू डोंट हैव टाइम, इफ इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, अवॉइड थ्योरी बुक्स, क्योंकि थ्योरी बुक्स बहुत टाइम लेगा। आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स को ही बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि सम सब्जेक्ट्स दोज आर नॉन गेट सब्जेक्ट्स कमिंग इन द ईएससी टेक्निकल पार्ट के लिए। उसमें क्या होगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन, इस टाइप के जो बी ट्रिपल ई वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें होगा कि बहुत चीज बहुत लोगों को नहीं आएगा। जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का आप एवरेज निकालोगे, मैं तो पिछले 10 साल का लिटरली एवरेज निकाल के रखा था कि इस पेपर में इस सब्जेक्ट से कितने आते हैं। तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले 3 साल में उन लोगों ने 70 नंबर के पूछने लगे थे। पर आप देखोगे कि इससे कोई ला रहा है इसमें, मतलब कि फीजिबल है, उसमें से पता चलेगा कि 40 मार्क्स के ऐसे होते हैं जिसको कोई अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता, मतलब कि कहीं से दे दिए वो। तो इसलिए तो 600 में 350 लाने में सब का हो जा रहा है, मतलब आपको 350 तक लाना है, उससे ज्यादा नहीं, 50% स्कोर कर लो बहुत है। तो आपको ये क्वेश्चंस छोड़ने पड़ेंगे। अब उसको पढ़ने मत चले जाना, क्योंकि उसकी वजह से आपके ये गेट वाले सब्जेक्ट्स है ना वो हैम्पर नहीं होने चाहिए। उसी तरह से एडवांस कम्युनिकेशन में फाइबर ऑप्टिक वाला जो फर्स्ट पार्ट है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो सेकेंड पार्ट है, और एक सेल्यूलर वाला मतलब मोर और लेस पढ़ो उसको, उसके थ्योरीज को पढ़ो, क्योंकि उसमें एक ही दो टर्म्स हैं जब स्विचिंग होता है उसमें वो पढ़ना होता है। डाटा कम्युनिकेशन को थ्योरी के जैसा पढ़ो, हम तो लास्ट के लिए बचा के रखे थे, लास्ट में पढ़े थे, या फिर बीच में कभी उसको पढ़ने लगो, कि मतलब सब कुछ लास्ट के लिए मत बता रखना, क्योंकि और डेडलाइंस हार्ड डेडलाइंस होने चाहिए तुम्हारे। जैसे कि लास्ट के 10 दिन आपको पता है कि हमको थ्योरी पढ़ना है, तो आप लास्ट के लिए बचा के रखे थे सब कुछ, और यहाँ पे आपको पता होगा कि ये 10 दिन मुझे बचाना ही है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाए, वहां पे छोड़ दो, थ्योरी पढ़ने लगो, क्योंकि थ्योरी हैम्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि थ्योरीज बहुत नंबर दे देते हैं, और आप बहुत सारा थ्योरी पढ़ रखोगे, राइट? तो मेरे जो बैचमेट्स हैं वो क्या करते थे कि क्योंकि उनको थ्योरीज बहुत आता नहीं था, तो वो क्या करते थे कि थ्योरीज के लिए वो पैराज लिखते थे, और पैराज आपको बड़े लिखने पड़ेंगे। एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लिख दिया आपने एक एक लाइन के, तो आराम से वो आपको 8 देने वाला है, और आप एक पैरा लिख लिए पूरे पेज भर के, आपको वो 6.5 या फिर 7 दे देने वाला है। तो पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे, और मतलब क्रिटिकल वो, लेकिन वो होता है आपको पैराज लिखने पड़ेंगे जब आपको आ नहीं रहा होगा, कुछ तो लिखना होगा ना, कॉलेज वाला भी याद आ जाएगा, फिर पैराज लिखने लगो कुछ भी। तो उससे बेटर है कि आपको पता रहेगा, पॉइंटर्स लिखो, आगे बढ़ो। कुछ पॉइंटर्स गलत होंगे, 1-2 पॉइंटर काटेगा वो, 8 नंबर दे देगा, उसको पता होगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंटर्स लिखे उन्होंने, 8 सही है, आगे बढ़ जाएगा। फिर इसलिए डाटा कम्युनिकेशन पढ़ते जाओ धीरे धीरे। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बोलूंगा जो फर्स्ट पार्ट लिथोग्राफी वाला होता है उसको अच्छे से पढ़ो, और कोई एक जैसे आईसी है या फिर कोई इक्विपमेंट है, जो ट्विन टब या फिर कोई भी एक मतलब ट्रांजिस्टर है, एक का किसी का एडवांस वाले का टोटल याद रखो कि वो कैसे बनता है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उससे आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो। जैसे एक ट्विन टब याद रखो, मैं ट्विन टब याद रखा था, कैसे बनाते हैं उसको, जैसे शुरू में कैसे उसमें मतलब लिथोग्राफी करते हैं, फिर कैसे उसमें यूवी रेज गिराते हैं, उसको कैसे मतलब फिर स्क्रैप्स करते हैं। तो वो एक प्रोसीजर याद रखो, सब याद रखने की जरूरत नहीं है, वो लिथोग्राफी वाला एक याद रखो, और उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा मतलब उसको कॉपी पेस्ट कर देना है बस, आर्टिकल चेंज करके, ऐसा। और हाँ वही, उसके अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत कुछ पढ़ो, क्योंकि बहुत पढ़ने के लिए गए तो पता चला कि गेट वाले सब्जेक्ट्स रह गए।
और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब कि इंपॉर्टेंट, और मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूं कि क्या छोड़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप करने जाओगे ना सब कुछ तो आपको दिखेगा कि वो लोग पूरा सिलेबस यदि 100% है तो वो जितना सिलेबस है ना ये 3 महीने का सिलेबस ही नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि इससे, लेकिन आपको दिखेगा कि 40% के अप्रॉक्स सिलेबस से वो लोग 70% टू 80% पूछ रहे हैं, तो वो 40% ही आपको पढ़ने पड़ेंगे और वो उसके भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो ये और थोड़ा सा कंप्रेस होकर 30% के अप्रॉक्स हो जाता है सिलेबस, तो वो 30% आपको ये 3 महीने में पढ़ेंगे अपने, तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और जिनका हमको लगता है कि 6-7 साल में भी नहीं होता, वो क्या करता है, वो ये 100% सिलेबस कवर करने के लिए चले जाते हैं, वो नहीं देख रहे थे कि पीवाईक्यू में वो, और पीवाईक्यू इतना है ना कि वो लोग चेंज ही नहीं कर रहे, जैसे मैं बोल रहा हूं ना वो लैपलास है, आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको लगेगा कि हर साल वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, पर डिजिट चेंज करते हैं डाल देते हैं, और वो लैपलास वाले क्वेश्चन, अब ऐसा हुआ कि आप सब पढ़ने गए, आपको लैपलास टफ लग रहा है, लैपलास छोड़ दिया और वो लैपलास ही पूछ रहे हैं, तो आप सब पढ़ के बहुत ब्रिलियंट हो गए नेटवर्क में, पर लैपलास नहीं आता है तो गया 10 नंबर, तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे नंबर लाना है। और मैं बोल रहा हूं ना कि इतना ये रखो कि मुझे बस नंबर लाना है, कोई थीसिस नहीं करनी, कोई स्मार्ट नहीं बनना, बस नंबर लाना है, जहां से नंबर ला रहा है, यदि कहीं पे कुछ भी लिखने से हमको नंबर मिल रहा है तो उसको लिख दो, और मतलब सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि नंबर लाना है, जहां से भी कुछ 2 नंबर 4 नंबर भी जुट रहे हैं नंबर आ जाएगा। हम बोलेंगे कि बहुत सारे कैलकुलेटर्स भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक जो कैलकुलेटर्स नहीं लिए होंगे, केसीओ का सबसे बेस्ट कैलकुलेटर आता है क्लासविज करके, बहुत लोगों के पास होगा, व्हाइट रंग का कैलकुलेटर आता है, वो एक बड़े बड़े इक्वेशंस को, आप बड़े इक्वेशंस को एक बार में सॉल्व कर देता है, तो कोशिश करो कि जो नहीं लिए हैं या फिर कोई दोस्त के पास है क्लासविज यूज करो और उसको सीख लो, क्योंकि जो जिसके फॉन्ट बड़े वाले कैलकुलेटर होते हैं, राइट, जो फॉन्ट बड़े वाले कैलकुलेटर होते हैं उसमें आपको एक इक्वेशन एक बार में सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दूसरा इक्वेशन दूसरे बार में, फिर तीसरा इक्वेशन तीसरे बार में, आप 5 इक्वेशन करोगे, कहीं एक एरर हुआ तो फाइनल में आंसर गलत हो गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और क्लासविज क्या करेगा कि एक बार में पूरा इक्वेशन आपका इनपुट ले लेगा और सीधा एक बार में आंसर डाल देगा, तो एरर के चांसेस जहां कम होता है। और क्लासविज में क्या है कि एक बार में आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लिख दिया, तो वो आपका 4 मिनट बच गया, और वो जितने भी 4 मिनट बच गए, और ये लिटरली ऐसा है कि यहां पे इफेक्ट करता है कि आपके पास थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा मनी है कि नहीं, मतलब कि वो क्लास में थोड़ा महंगा है लेकिन आपका 5 मिनट भी बचा दे रहा है एग्जाम में, तो वो 5 मिनट में आप 10 नंबर का कोई क्वेश्चन कर ले रहे हो, 10 नंबर ऐड ऑन हो जा रहा है, रैंक 5 से बढ़ जाएगा। तो कहीं से भी रैंक लाओ, कहीं से भी मार्क जोड़ो और टूल्स देखते रहो कि कहां से क्या हो सकता है, कहां। मैंने तो मैं उसके पहले राइट्रोमीटर से लिखता था, मतलब कि प्री के कुछ बार टेस्ट सीरीज में देख रहा था कि वो काफी हल्का हो जाता है राइट्रोमीटर कुछ देर चलने के बाद, तो उसके बाद मतलब कि मैं डिस्कस कर रहा था मतलब कि अपने भैया के साथ कि भैया मुझे लग रहा है कि वो राइट्रोमीटर के वजह से मतलब कि वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो मतलब मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व था कि मार्क्स कहां से आएगा, एक्स्ट्रा मार्क 1 मार्क भी, तो उसके बाद मैंने पेंटोनिक में शिफ्ट किया था, अभी तक मैं पेंटोनिक से लिखता हूं, तो क्योंकि पेंटोनिक बहुत अच्छा चलता है, वो बहुत डार्क चलता है, बहुत सही दिखता है, पेपर अच्छा दिखता है, तो मैं बोल रहा हूं ना कि वहां पे जो होगा। और मेरे 12th में एक टीचर्स बोला करते थे कि सोच के रखो कि वो जो टीचर पेपर चेक कर रहा है उसका मूड ऑफ है, लाइट ऑफ है वहां पे, और शाम का टाइम है, वो बस घर से आना चाह रहा है तुम्हारा पेपर कनेक्ट करके, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम कितना मेहनत किए हो दिन भर, तुम्हारा पेपर इतना अच्छा होना चाहिए कि वो बस पेपर देखे और मार्क देना शुरू कर दे। और वो सही बात है कि पेपर अच्छा प्रेजेंट करना मैटर करता है बहुत, आप मतलब कि आपको टॉपर्स बोलते भी होंगे कि हैंड राइटिंग से मार्क इफेक्ट नहीं पड़ता, या फिर कि हैंड राइटिंग से मार्क इफेक्ट नहीं करता, लेकिन आप यदि उनको समझ में नहीं आया ना वो लिखा हुआ क्या है, मतलब कि उतना भी खराब नहीं कर देना कि वो फोन काट दे। और हैंड राइटिंग से थोड़ा मतलब कि हैंड राइटिंग उतना इफेक्ट नहीं करेगा, पर कोशिश करो कि हैंड राइटिंग कम से कम पढ़ने लायक हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से फर्स्ट 2 चैप्टर्स को बस उसके फॉर्मूलाज लिख लेना जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स मतलब जो जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो जेई के टाइम्स वाले हैं, उसके बस फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा, और उसके बाद बाकी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले वेव से, फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो गेट के लिए पढ़ाते हैं सर, वेव से 90% क्वेश्चन आएंगे, और वेव गाइड से एक क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉट आएगा TE10, मुझे पता है कि
मतलब मुझे तो इतना ज्यादा एक्यूरेट हो गया था मैं क्वेश्चंस जज करने में कि टेस्ट सीरीज में मैं देखता भी नहीं था कि कौन सा मोड दिया हुआ है। मुझे पता था कि T10 लगाना है, उसके फॉर्मूलाज रट रखे थे, उसमें FC क्या होगा सब कुछ रट रखा था। FC उसमें FC होता है कि F/2 F0/2 ऐसा कुछ, तो सब कुछ रट रखा था। अब वो कभी कभी मोड चेंज कर देते थे तो मेरा आंसर गलत हो जाता था, क्योंकि टेस्ट सीरीज में कभी कभी वो चेंज करेंगे पर एग्जैक्ट एग्जाम में कभी नहीं चेंज करते। वो हमेशा जाते हैं बेस्ट ऑप्टिमम के लिए, T10 लगाते हैं, आंसर लाते हैं। मतलब कि नहीं भी दिया हुआ है, कभी कभी ऐसा होगा कि पेपर में वो लोग कुछ कुछ डाटा मिस करेंगे, तो आप T10 का फॉर्मूला लगाओ, आंसर लो। वो वहां पे पता चला कि और क्या होने वाला है, नहीं दिया हुआ है ना, सबके लिए नहीं दिया हुआ, एज्यूम करने के लिए वो भी बोल देते हैं T10 सबसे अच्छा फॉर्मूला उसका बनता है, सिंपल होता है, आंसर लाओ आगे बढ़ो। तो वो वेब गाइड के एक क्वेश्चन आएंगे और वो बहुत इजी होगा, उसको देख लेना। TEM का जो सेक्शन होता है सेकंड वाला, जो तीन तीन पैरामीटर्स होते हैं, वो बस फर्स्ट सेक्शन का एक्सटेंशन होता है, तो उसके एक दो क्वेश्चंस देख लेना, बहुत ज्यादा उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। वेब इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बस मेरे साइड से मोर और लेस यही था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 50 क्वेश्चंस कोशिश करो कि डेली करने का, और नहीं होता है तो रीच आउट करो, चाहे टीचर्स को, चाहे हमको, चाहे किसी को भी, कि सर हो नहीं पा रहा है, तो मतलब कि वो कैसे नहीं हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम, और नहीं होगा, हम बता रहे हैं शुरू में नहीं होगा, 25-30 क्वेश्चंस करते करते लगेगा कि अब हो गया नहीं, पर आपको करना पड़ेगा। मैंने ना लास्ट में 70 क्वेश्चन करने लगे थे, 80 क्वेश्चन करने लगे थे, और आप देखोगे कि ये जो बोलते हैं ना कि सर टीचर मतलब टॉपर्स बोलते हैं कि आप क्वेश्चंस देखते ही समझ जाओगे कि क्वेश्चंस करना है या नहीं करना है, पर ऐसा होता नहीं है। मेरे साथ तो नहीं हुआ था। आप गेट में जाओगे, आपको लगेगा ये क्वेश्चंस हो सकता है, हाँ हो सकता है वाला जोन में, और फिर देखो कि आप करने गए 10 मिनट चला गया और नहीं हुआ, तो वो कहां से पता चलेगा ना कि कौन से क्वेश्चंस करने नहीं करने। ये 50 क्वेश्चंस भी ऐसे करने हैं कि 50 क्वेश्चंस उठाओ, आपको पता है कि आज दिन भर में बस ये 50 क्वेश्चंस ही करने हैं। आप फर्स्ट सीटिंग में वैसे ही करो कि ये क्वेश्चंस मुझे आसान से बन गए, सेकंड क्वेश्चंस नहीं बन रहा है छोड़ दो, उसको नेक्स्ट बार में बनाएंगे, एकदम पेपर जैसा सॉल्व करो। तब आपको ये ट्रेन होते, जैसे 3 महीने तक ट्रेन करोगे ना अपने आप को कि 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन में फर्स्ट बार में ही हमको लगता है 20 से 25 क्वेश्चन बन जाएंगे, यदि वेल फोकस्ड आराम से बनाओगे तो। फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाओगे, जो गलत हुए होंगे आप देखोगे कि सिली मिस्टेक्स की वजह से 5-6 क्वेश्चंस और बन गए आपके, तो 30 क्वेश्चंस बन गए। अब बाकी पूरा दिन बचा हुआ है और 20 क्वेश्चंस ही बनाने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनाना है। और ये जो 20 क्वेश्चंस यहां पे स्किप किए राइट, ये 20 क्वेश्चंस आप डेली स्किप कर रहे हो, तो आप ट्रेंड हो जाते हो एग्जाम में स्किप करने से। आपको पता होता है कि आपको वहां पे, जैसे बहुत टॉपर्स बोलेंगे कि हम देखे, हमको पता चल गया ये क्वेश्चन नहीं बनेगा और हम इसको स्किप कर दिए, पर ये मतलब कि आप एज ए मतलब टेस्ट टेकर कभी नहीं होता है। आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में जाओगे, गेट में भी सेम होता है, गेट में भी मैं 100 क्वेश्चंस डेली इसलिए करता था क्योंकि मुझे पता था, और वो ऐसे ही करता था, फर्स्ट में पेपर से सॉल्व करता था, फर्स्ट में वही क्वेश्चंस करता था कि जो मुझसे एक बार में बन गए, आंसर सही आ गया, तो मैं देखता था कि 50 क्वेश्चंस मैंने कर लिए शुरू के 3 घंटे में। अब पूरा दिन बचा हुआ है, मुझे 50 क्वेश्चंस ही करने हैं, और वो पता है कि मैंने फर्स्ट बार में छोड़ रखे, और फर्स्ट बार में छोड़ने का मुझे ट्रेन यहां से मिल जाता है कि मैं, क्योंकि मैं दिन मतलब कि डेली उसको छोड़ रहा हूं राइट, मुझे अब धीरे धीरे एक्यूरेट पता चल गया कि मुझे कौन से क्वेश्चन छोड़ने, कौन से क्वेश्चन नहीं छोड़ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके मेंस में आपको एक बार आप छोड़ दिए किसी क्वेश्चन को, आपको शुरू के 5 मिनट में 15 मिनट में डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से छोड़ने, और एक बार आप छोड़ के वो क्वेश्चन में घुस गए तो आप इतना इन्वेस्टेड हो जाओगे कि फिर आप बैक नहीं आ सकते। तो कोशिश करो कि छोड़ने में एक्सपर्ट हो जाओ कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, और वो छोड़ने वाला यहां से आएगा। उसको ऐसे ही करो कि 50 में से शुरू में 25 बन जाएंगे, 30 छोड़ेंगे, और फिर लास्ट में आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस आप वहां पे अटेम्प्ट करोगे लास्ट होते 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 लास्ट में आप देखोगे कि उससे बेटर परमुटेशन आप कोई कर ही नहीं सकते थे। मतलब कई बार जब पेपर आप दे रहे होगे राइट, तो आपको लगेगा कि इससे में 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, कैसे चूज करें इस दोनों के बीच में। ये तब होता है जब आप मतलब कि छोड़ने में एक्सपर्ट नहीं होते, धीरे धीरे करके आप इतना ट्रेन हो जाओगे कि लास्ट में आप फाइनल पेपर दे के आओगे, घर में देखोगे तो आप देख रहे होगे कि मैंने बहुत सही मतलब कि क्वेश्चन चूज किए थे। और क्वेश्चन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब अभी तो फॉलो करो, इसके अलावा भी किसी के पास कुछ प्रॉब्लम्स है तो मतलब कि डिस्कस कर लेते हैं 3-4, उसके बाद रैप अप कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ तो कोशिश करो कि जैसे वो जो टाइम ले रहा है राइट, कोशिश करो कि रिसोर्सेस और कम कर दो।
रिसोर्सेज आप अभी रिसोर्सेज बहुत लगा रखे हो, हमको ऐसा लग रहा है। रिसोर्सेज बहुत कम कर दो। रिसोर्सेज आपके बस होने चाहिए पीवाईक्यू, फिर पीवाईक्यू और फिर पीवाईक्यू, और उसके अलावा टेस्ट सीरीजेस दो। एक यदि एक हो पा रहा है, नहीं तो एक एक्स्ट्रा ले लो किसी का, पर मेडी जी का एक टेस्ट सीरीज मोर देन इनफ है। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना ही पड़ेगा। वर्कबुक में अनसॉल्व करना है, सॉल्व वाला टाइम बचा तो करना, वरना छोड़ना। और ये पीवाईक्यूज करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, बस। इसके अलावा अगले रिसोर्सेज पे तभी जाओ जब तुम्हारे पास टाइम बच रहा है आपके पास। प्रीलिम्स के नोट्स, गेट प्लस प्रीलिम्स के नोट्स होंगे तो रिवाइज कीजिएगा, वरना प्रीलिम्स के नोट्स बहुत मैटर नहीं करते। मतलब कि कुछ पार्ट जो न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं आपके, उसको रिवाइज कीजिए, और बाकी पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़िए बार बार। पीवाईक्यूज के जो थ्योरी वाले पार्ट्स है, क्वेश्चंस है ना, उसको अच्छे से पढ़िए बार बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पीवाईक्यूज के नोट्स क्या होता है ना, कि हम लोग प्रीलिम्स तक इतनी बार पढ़ चुके होते हैं कि आप अभी पढ़ने जाओगे, आपको लग रहा होगा कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप एक ही चीज को पैसिवली पढ़ रहे हो, राइट। और वो देखो कि पीवाईक्यूज में पूछ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। और कोई क्वेश्चंस है? हाँ, मार्क्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर जीएस में अराउंड मेरा 85 था, कुछ पॉइंट्स में ऊपर नीचे। इसके अलावा 155 था मेरा उसमें प्रीलिम्स के टिक में, और मेंस मैंने बोल दिया है, और मेरा इंटरव्यू में 130 था। तो 130, और वो ये मेरे मार्क्स है। पर मोर और लेस आप इसको अपने तरफ से देख सकते हो। इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यू में कैसे अच्छे कर सकते हैं वो आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा आपको नॉलेज के साथ कैसे इंटरव्यू ड्राइव करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल भी पूछते हैं, लेकिन पीएसयू जितना टेक्निकल नहीं होता है, वो थोड़ा सा अच्छे से होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, देखिए प्रॉब्लम होता है ना कि जब तक आपका बैच खत्म होगा, तो बैच खत्म होने से अराउंड आपको 25 दिन ही लास्ट में मिलेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सब कुछ लास्ट के लिए मत बचा के रहो। तो मैं वही बोल रहा था कि रिसोर्सेज कम कीजिए, अपने जितने हो सकते हैं रिसोर्सेज कम कीजिए। आप जो बोल रहे हो ना कि वही नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो देखो ये कि कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं हम। वर्कबुक कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पीवाई क्यू आपको करना है, वो कर पा रहे हैं उतना, ठीक है। उसके अलावा मत करिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज को जितना कम हो सकता है उतना करिए। क्योंकि मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया था, और मुझे ऐसा हुआ था, उसके बाद में भी मुझे बहुत पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहां से पूछ देंगे वो लोग। तो वो, और उसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको बहुत, मतलब बहुत ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, 20 दिन या 25 दिन कम पहले तक खत्म हो जाएंगे। तो आपके पास 20-25 दिन होंगे, लेकिन उसमें कुछ छोड़ के मत रखिए, क्योंकि उसमें थ्योरीज बहुत पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल्स उस समय आप ट्रेन कर नहीं सकते हो अपने आप को। आप गेट दिए होगे तो आपको पता होगा, लास्ट टाइम में न्यूमेरिकल बनाने से कुछ नहीं होता, तब तक जो होना होता है हो चुका होता है। उस समय में बस थ्योरीज रिवाइड और शॉर्ट नोट्स रिवाइज ही होता है। इतना प्रेशर होता है कि न्यूमेरिकल जो बजाने ही जा रहे थे वो भी गलत होने लगते हैं। तो उस समय के लिए थ्योरीज बचा रखिएगा, क्योंकि और दिन भर आप जब थ्योरीज पढ़ोगे ना, तो नई नई चीजें, जैसे कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, राइट। और हम लोग न्यूमेरिकल्स इतना बता रहे होते हैं कि हम लोग को लगता है न्यूमेरिकल जब तक नहीं बना रहे तब तक हम लोग थक नहीं रहे, दिमाग यूज नहीं हो रहा है। पर थ्योरीज वहां पे आप देखोगे कि एक एक दिन में आप 50-50 60-60 पेज जब थ्योरीज पढ़ोगे, तो बहुत दिन थ्योरीज पढ़ने लगोगे, राइट। तो लास्ट के टाइम में थ्योरीज के लिए बचा के रखिए, और वो 25 दिन पे बहुत ज्यादा निर्भर मत रहिएगा। कोशिश करिए कि पहले ही सब कुछ रैप अप करें, क्योंकि वो 25 दिन में यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 बार पीवाईक्यूज कर चुके होंगे, जो कि बहुत रेयर है, तो फिर एक बार आप और पीवाईक्यू कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिकल के सेम पीवाईक्यूज को कर सकते हो। तो वो आपको एक्स्ट्रा एज दे देगा। जैसे कुछ टॉपर्स बोलते हैं ना कि मैंने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, तो वो यहां से करते थे। मतलब वो यदि सो नहीं रहे हैं तो वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, खूब सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को बार बार कर रहे हैं। पीवाईक्यूज को मतलब कुछ भी नहीं करो आप, टेस्ट सीरीज में मत दो, पीवाईक्यू को 3 बार कर लो, तो आप देखोगे कि अराउंड 300 मार्क्स आ जाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। हाँ, एक जितना आप ला सकते हो, मैं बोलूंगा कि 300 तो क्रॉस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। तो 300 स्क्रैच से आप क्रॉस कर सकते हो। और मतलब कि बेसिक्स बहुत ठीक नहीं है तो पीवाईक्यू को बेस बनाओ, और मतलब पीवाईक्यू बनाओ, गलत हो रहे हैं उनमें कौन सा पार्ट गलत हो रहा है उसको, जैसे बोलेंगे ना नेक्स्ट टाइम पे वो गलती नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होगी?
उसमें जो पार्ट्स आपके नहीं हुए उसको शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए तुरंत, और वो शॉर्ट नोट्स को डेली फिर पढ़िए। मेंस के अलग शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसमें मेंस के क्वेश्चंस पीवाईक्यू को डालिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, और वहां से नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, और कोई? फाइन, सब सही है। उसके बाद चलो, ठीक है भाई।